First of all, I would like to extend a warm welcome to everyone, our guests, our speakers, sponsors, participants, and everyone who had turned up here and had made this event grand and made this event successful and had blessed it. So, welcome everyone, and the people who had gathered here had actually invested their time, energy, and everything. And I think so everyone deserves a huge round of applause, please, for everyone who has gathered here. I would also like to, I think we all have a responsibility to appreciate the team of Sohail Bhai and everyone who has been part of it from the scratch, from the thought, and then they had executed this today. I think sorry. Yeah. So Sohail Bhai and the team who had made this day possible, and today we are living this, and this they had made all these things possible. They had given their time, energy, their vision, and everything. They dedicated this. They also, I think we all should have to appreciate them with a huge round of applause. Please, for these guys who had worked round the clock and made this event possible. Now this is very exciting. What we are going to go down. We will be having a section. It's actually youth conclave. What is it all about? And we need to understand. Youth conclave is about actually addressing the issues which our youth is facing in their entrepreneurship or in their career building or whatsoever related to their career. What we have done here is we have handpicked and sorted some panelists here. So there you are seeing here, there will be panelists over here. And these panelists are the ones who had created their names. They had transformed their names into the brands. The people whom you can say you can rely on. The people who had made it possible and pulled it. So those people will be present here, and the youth or the persons, whoever is having any questions related to their career, business, entrepreneurship, can shoot them right to them, and they will be answering those questions from their success stories, from their experiences, from their wisdom and whatnot. I think this is going to be very exciting, and we would like to welcome our panelists. So I'll hand it over ahead, and we will be welcoming our panelists here with their introduction, and we will be getting over to them. Thank you, Naeem Bhai. Thank you. I would like to invite Janab Sohail Bhai Sawani to please come and felicitate our panelists. Please come on stage. I would like to introduce the first panelist today, an exceptional and an extraordinary person. She's one of India's leading information security professionals, and is working with the French bank BNP Paribas. He had an illustrious career of 22 years and still going strong. Mr. Manan Godil. There is so much more I want to tell you about him. He specializes in cybersecurity, information risk governance, Mr. Manan Godil has been awarded quite extensively, and I am told he is also a certified ethical hacker. Now I didn't know what that means. तो मैंने किसी को पूछा what is a certified ethical hacker? तो उन्होंने जवाब दिया कि he is a guy जो आपके लैपटॉप को हैक कर सकते हैं, आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन
चुरा सकते हैं पर करेंगे नहीं क्योंकि he is a good guy. Okay, that's what a certified ethical hacker is. We are honored to have you here, Mr. Manar. लेकिन आपको बताएंगे जरूर कि ये हुआ था. This is his rejoinder. Thank you so much, sir. We are glad to have you on our side. You know. Thank you so much. Let me introduce you to our next panelist, an electronic engineer by profession, Mr. Sunny Kabrawala. He is pursuing research in space technology. At the age of just 19, he launched his first startup, space technology and aeronautical rockets known as STAR, which was initially just a rocket club, which later on successfully built and launched first satellite of Surat. He is also into launching solid propelled rocket engines and constructing a Mars rover. Mr. Sunny Kabrawala at STAR does not want to change the world, but he wants to give us access to a new one. Now I would like to request Mr. Nain Megawala to come forward and felicitate our next panelist. Sir, please. I would like to introduce you to our next panelist. He has an illustrious journey in a field that few have ventured in. He is a prominent labor law consultant with an impressive list of clients who are captains of industries. He is also the founder of Savani Institute, which coaches employees of mega corporations on labor law, government policies and compliance. He is also called upon to act as a bridge between industry and government, and is very highly regarded for his understanding and interpretation of labor law by none other than the Labour Ministry. Please welcome on stage Mr. Sohail Savani. Please begin. Now, our next interesting dynamic personality, Mr. Aslam Charania. He is the founder of consultancy services firm N2 for SMEs. His journey of life has been none less than a roller coaster ride. From failing in Standard 7 and then becoming a tailor to earn his living, he successfully overcame several twists and turns of his journey to become a trainer from a tailor. And today, he is a very sought after business coach. Please give a good hand to him. And now, we have a business tycoon. He has work experience in several fields like textile, telecom, and renewable energy. His flagship company, KP Buildcon Private Limited, established in 1994, is a listed company on BSE and NSE, spreading its presence in 16 states, comprises of 33 companies with a market capital of 1,200 crores. Furthermore, he is an active philanthropist with the KP Human Development Foundation, aiding in fields of education, healthcare, and environment. We are honored to have such a personality today, Mr. Farooq. Please welcome. We are glad to welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you. Nain bhai, thank you so much.
And now I would like to introduce the moderator for the panel discussion, Mr. Faisal Godel. Big round of applause for him too. Thank you, sir. Thank you. It's a great honor, sir, sitting. सर आपके लिए काफ़ी लोग इसके अंदर आप जैसे आप देखा आपने कि आप जैसे आ रहे थे तो काफ़ी इसके अंदर आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. पीपल रियली आपको बहुत इसके अंदर एडमायर करते हैं सर. तो ये आपकी जर्नी व्हेन डिड योर फैसिनेशन फॉर द रॉकेट स्टार्ट? सबसे पहले आप कब फैसिनेटेड हुए रॉकेट के लिए? First of all, thank you so much for inviting, and it's really an honor for me to share the stage with the eminent speakers, especially Aslam sir, उनसे ही सीखा हूँ मैं about startup and entrepreneurship. And about my journey, बचपन में I think as kids जब भी हम नाइट स्काई देखते हैं तो we wondered about creation of universe. हमें फील होता है कि ये stars, ये मून ये कैसे बना है. And I think जब नाइट स्काई को देखते हैं तो हर एक बच्चे के दिमाग में आता है कि बड़ा होकर मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है या स्पेस साइंटिस्ट बनना है. सेम ड्रीम मेरा भी था. मुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना था. एंड द थिंग इज़ कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था. एंड आई फेल इन फिजिक्स इन 9th स्टैंडर्ड, सॉरी इन 11th स्टैंडर्ड, एंड 12th में आई गॉट 42% ग्रेड्स. तो मुझे पता था कि मैं कोई गवर्नमेंट कंपनी या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिलेगा. एंड मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया कि हमारे देश में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको स्पेस में अपना करियर बनाना है लेकिन उनके अपॉर्चुनिटी उनके पास कम है, जस्ट बिकॉज उनका फैमिली बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बैकग्राउंड या तो फिर एजुकेशन. तो उनके लिए आई वांटेड टू मेक अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे बच्चे सीख सकें. और हमने स्टार प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, जहाँ पे हम रॉकेट्स और सैटेलाइट्स कैसे बनाना है ये सिखाते हैं. अभी तक हमने 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हमने ट्रेन किया है. अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है ये डेवलपिंग अ रॉकेट कॉल कलाम. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को डेडिकेट कर रहे रॉकेट जो फॉरेन में अभी जो लॉन्च कॉस्ट है, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ चीज़ स्पेस में भेजना है तो 1 किलोग्राम का उनको 20 लाख 20 लाख रुपए लगते हैं 1 किलो का. हाँ, हमने वो कॉस्ट ड्रॉप कर लिया है 2 लाख तक. और ये रॉकेट पूरा सूरत में ही डेवलप हो रहा है. एंड वैसे जर्नी स्टार्ट हुआ था कि फेलियर से, जहाँ पे एक प्रॉब्लम मिला कि कितने बच्चों को स्पेस में इंटरेस्ट है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है. और वो जर्नी आज भी चल रहा है. एंड 7 साल हो चुके हैं. इट इज़ नॉट फंडेड कंपनी, नॉट इन्वेस्टेड कंपनी, ये स्टूडेंट्स रन कंपनी है. स्टूडेंट्स इसको चला रहे हैं. ग्रेट स्टोरी, ग्रेट स्टोरी. तो इससे एक चीज़ पता ये लगती है कि इसके अंदर एक रूमी का एक शेर है, उसका मैं आपको उसका मीनिंग बताता हूँ. जहाँ आपको मार लगती है ना, व्हेन यू गेट अ वुंड समवेयर, सो दैट बिकम्स अ प्लेस जहाँ से इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर रोशनी जाती है और आपके बॉडी के अंदर एनर्जी जाती है. वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैशन. तो इट्स अ वेल सर. एक लास्ट चीज़ ऐड करना चाहूँगा. हमारी टीम हमेशा एक ही चीज़ बोलती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है साइंटिस्ट, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स, दे सिटिंग इनसाइड क्लासरूम. वो आज क्लासरूम्स में बैठे. जिस तरह से हम उनको नर्चर करेंगे उसी तरह से वो हमारे प्लानट को नर्चर करेंगे. ठीक है, ठीक है. मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर काफ़ी बच्चे आवाज़ कर रहे हैं और काफ़ी बातों की आवाज़ आ रही है. आपको इसका इम्पोर्टेंस नहीं मालूम है कि ये आपके सामने जो एक फ्रेम के अंदर हमने कोशिश करके जिनको बिठाया है ना, आप इसके अंदर आपकी लाइफ टाइम निकाल लोगे तो उनको अलग अलग नहीं मिल पाओगे. आप इनको एक फ्रेम के अंदर हमने बिठाया है. इसके लिए आप बहुत इंटरेस्ट से सुनिएगा. ये आपके लिए किया गया है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन फारूक सर आपके लिए है. सर व्हेन यू स्टार्टेड, जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी सर, क्या आपने ऐसा इमेजिन किया था टुडे यू आर अ बिजनेस टाइकून, यू आर अ सेलिब्रिटी? कभी आपने ऐसा सोचा था कि इसके अंदर यू विल गेट टू दिस स्टेज, इतने इलस्ट्रियस जर्नी होगी आपकी? कभी आपको ऐसा ख्याल आया था? देखो, मेरी लाइफ इसी एरिया के अंदर शुरू हुई है. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि 1994 में हमारी बिजनेस की लाइफ यानी बिजनेस की जर्नी शुरू हो गई. हम लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे, लेकिन जब शुरुआत हुई तो बहुत जल्दी की. यानी यूथ यहाँ पर जो बैठा है, क्योंकि एक उम्र होने के बाद तो बहुत सारे सपने हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी टूट गया, ये भी टूट गया. खास करके यूथ के लिए मैं कहूँगा
17, 18 या 19 साल की उम्र में शुरू हो जाना चाहिए बिजनेस का लाइफ। और बिजनेस का लाइफ जब 17, 18 साल की उम्र में आपने बड़े अच्छे इससे सुना होगा, वॉरेन बफेट हमेशा कहते थे 14 साल की उम्र में सबसे पहला मैंने इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। मुझे अभी भी उसका अफसोस है कि क्यों मैंने 9 साल की उम्र में नहीं किया। तो बहुत जल्द हम लोगों को इस फील्ड के अंदर भी हम लोगों को शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीथिंग जो कुछ भी होता है दुनिया के अंदर में, हम लोग चाहते ये है कि अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा करना ही चाहिए। और इसका एक ही वजह है कि हमारी लाइफ सेटल हो जाए। एवरीवन इज थिंकिंग। तो हमने भी यही सोचा और हम लोगों ने एडवर्सिटी के अंदर ये सोचा था कि हम लोग बहुत ही अच्छा काम करेंगे। और जो आपका सवाल था कि क्या आपने सोचा था, बिल्कुल मैंने इससे भी बहुत बड़ा सोचा हुआ है और इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे। आज हमारी कंपनी का मार्केट कैपिटल 2000 करोड़ है। भाई साहब ने जो 1200 दिया था वो बराबर था 6 महीने पहले था। आज वो 2000 करोड़ है और इन वेरी नियर फ्यूचर हम लोग 25,000 को टच करेंगे इंशाल्लाह। और ये हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में कर रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसी हम लोग अपने आप को इस वजह से सबके सामने रख रहे हैं ताकि बाकी सारे जितने भी यंग यूथ लोग हैं, देखो ये मुश्किल नहीं है, किसी भी चीज को पाना मुश्किल नहीं है। बशर्त ये है कि आपको पागलपन की तरह मेहनत करनी पड़ेगी ताकि लोग आपको पागल दीवाना समझने लगे, वहां तक की मेहनत करनी पड़ेगी। इसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। मेहनत का और कोई भी विकल्प दुनिया में बना नहीं है। सक्सेस का एक ही मंत्र है और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। एक चीज़ यहाँ पे हमको ये समझ में आती है कि बड़ा तो हर कोई बन सकता है, लेकिन मेहनत हर कोई करना नहीं चाहता। अगर आप मेहनत करोगे तो आप एक ब्रांड बन सकते हो। फारूक सर ने अपने आप को एक ब्रांड बनाया है, आप भी अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हो, बशर्ते आप एक चीज़ को, एक विजन लेके मेहनत करें। थैंक यू सर। तो मेरा अगला सवाल मनान सर आपसे है। सर इसके अंदर आपके हम प्रोफाइल देख रहे थे सर, तो इसके अंदर कुछ कुछ डिग्री थी, हमको ऐसा लगा कि वेरी लेस नोन एंड अचीवमेंट्स देखी तो सर हमको लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसी भी कोई फील्ड है क्या। तो सर हमारा ये सवाल था कि सर इसके अंदर ये आप प्लान किए थे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये डिग्रीज भी करनी है, ये भी हासिल करना है, और लाइक इसके अंदर एक एक स्टेप आपने लिया है एज इट केम। ओके सो देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि प्लान। ओके मेरा कोई प्लान नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे इसका कोई विजडम नहीं था, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये 2004 में जब मैंने इसमें एंटर किया, इट वाज एन एब्सोल्यूट एक्सीडेंट। उसके लिए मैं 1 मिनट लूँगा बताने के लिए टू शेयर द स्टोरी। ये मेरी जो कहानी है ये बहुत ही आम कहानी है, दिस इज नॉट न्यू, ये हर किसी के साथ होती है, आप लोग के साथ भी कई बार हुई होगी आई एम श्योर। मैं दुबई से लौटा था क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और मैं बॉम्बे में था और मेरा जाना मुमकिन नहीं था। और उस वक्त मेरा एक बहुत ही खास दोस्त था, उसने मुझे एक जॉब की तरफ मुझे एक रेफरेंस दिया कि भाई व्हाई डोंट यू गो एंड मीट दिस पर्सन। आई मेट द मैन एंड ही ऑफर्ड मी एन IT मैनेजर रोल। एक IT मैनेजर का रोल मुझे मिला वहाँ पे और मैंने वहाँ पर वो जर्नी शुरू हुई। बट उसकी एक कंडीशन थी, उसने बोला 11 to 11 6 days a week। एक ही थियोरी थी, 11 to 11 6 days a week। थोड़ा सा झूठ बोला था उसने, वो 6 नहीं था, वो 6.5 था। बट एनीवे आई वॉज कमिटेड। मैंने उनसे कहा था आई विल स्टे कमिटेड टू यू, आई वॉज सिंसियर, आई वॉज कमिटेड, और मैंने वो जर्नी शुरू की। 1-2 महीना 2.5 महीने में ये एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नाम की कोई चिड़िया कहीं से वो ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कशन में आ गई। वो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करती थी। कंपनीज लाइक डेल, आपने डेल सुना होगा जो लैपटॉप बनाती है, वैसी कंपनीज थी जो बड़ी बड़ी कंपनी थी। सिटी बैंक था, देयर वर मेनी नेम्स। और उनमें से वो लोग जो थे वो इंडिया आते थे और ऑडिट करते थे। सो कई करोड़ लैक्स का खर्चा करके इंडिया आके ऑडिट करते थे और देखते थे कि भाई हमारा जो डेटा है जो हमने इनको दिया है वो इन्होंने सेव किया है, सेव करके रखा है कि नहीं, प्रोटेक्ट करके रखा है कि नहीं रखा है। उनकी वो आदतें हैं, उनकी वो प्रोसेसेस हैं, उनकी वो प्रैक्टिसेस हैं जिससे अपना डेटा सेफ है इनके पास कि नहीं।
ओके, मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमारे पास इसका एक इजी आंसर था। वो ऑडिट्स बहुत डिफिकल्ट थी, हमारे पास इसका एक इजी आंसर था, वो ये था, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास था। ऑफ कोर्स आई डिडंट नो अबाउट इट बैक देन। तो उनका प्लान ये था कि हम एक ISO का सर्टिफिकेट करें, कंपनी के लिए एक ISO का सर्टिफिकेट करें। वो बाहर वाले आके एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि भाई इनके पास जो प्रैक्टिसेस है, इनके पास जो डेटा है हमारा, वो सेफ है, बस इतनी सी बात। लेकिन वो ऑडिट को पास करने के लिए तैयारी करनी थी, ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर काम कर रही थी। मेरा तवज्जो उस तरफ था और एक बंदा उसके ऊपर काम कर रहा था। मैंने कहा मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए। मेरे मैनेजर ने मुझे बहुत ही क्लियरली बताया कि भाई देख ले, तुझे करना है तो तू कर सकता है, तेरे पास टाइम नहीं है, जो टाइम तुझे निकालना है वो जो तेरा रूटीन है उसके बियॉन्ड निकालना पड़ेगा। अभी 11 to 11 6 days a week कहाँ निकालो टाइम। वैसे बीच में गैप्स मुझे मिले, मैंने अपना खुद का जो पर्सनल सैक्रिफाइस था वो सब किया मैंने, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्टिफिकेशन हमने विदिन 3 months टाइम वो अचीव किया। दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही फायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज ऐसा आया कि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रेकमेंड किया कि मैं अपनी एक टीम क्रिएट करूं जो इसको कॉन्स्टेंटली देखे, और फिर उसमें हम बहुत आगे बढ़े, क्योंकि वो तो खाली ऑडिट था, उसके बाद में हमने नए नए प्रोडक्ट्स लेने थे, क्योंकि उस ज़माने में सिक्योरिटी कोई नहीं समझता था। खैर आज आप समझते हैं और आप मुझे बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल मालूम नहीं, आप सोचिए मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त पे मुझे वो एंट्री मिली। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड विद दिस वन अपॉर्चुनिटी विच इज़ वेरी रेयर, कि भाई मैं उस काबिल बाद में बना, पहले मुझे वो सब्जेक्ट का अपॉर्चुनिटी दिया गया। सो आई स्टार्टेड सर्टिफाइंग माई सेल्फ। मैंने फिर उसके बाद में सर्टिफिकेशन हासिल की वो टॉपिक की तरफ जो बहुत ही क्रिटिकल होने वाला था। और ये जिस दोस्त ने मुझे रेफर किया ये जॉब, उसने मुझे ये बोला कि तू बहुत सही डिसीजन ले रहा है, यू शुड गो अहेड इन दिस, ये फ्यूचर। और आज जब मैं देखता हूँ जहाँ से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज था। आई वेंट ऑन, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन गया, फाइनेंशियल सर्विसेज में एंटर किया मैंने। एडवाइज में मेरा 10 साल निकले अल्हम्दुलिल्लाह। BNP में मुझे इन लोगों ने डायरेक्टर की पोजीशन ऑफर की। 3 साल पहले भी इन्होंने मुझे ऑफर किया था और मैंने रिजेक्ट किया था, क्योंकि मेरे अपने प्रायोरिटीज थे उस वक्त, और मुझे लग रहा था कि आई वाज डूइंग वेरी वेल इन द करंट रोल। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन में मुझे इन लोगों ने बड़ा रोल दिया, सीनियर पोजीशन दिया मुझे इन लोगों ने, 150 एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने की अथॉरिटी दिया मुझे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हियर आई एम टुडे। सो दैट्स माय जर्नी। थैंक यू। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई सर, इसके अंदर डेडिकेशन तो हर जगह चाहिए। विदाउट डेडिकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। डेडिकेशन और विजन, दो चीज़ों के ऊपर इम्फोसिस ज़्यादा। एंड एथिक्स प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दिस, क्योंकि काफ़ी सारी सिचुएशंस आई जब मेरे जो डिसीजंस थे वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मैटर करते थे, और ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रस्ट करके मुझे वो डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिचुएशन को मैंने जो ये अल्लाह तरफी है, बेशक मैं मतलब मेरी कोई औकात नहीं है इसमें, ये मैं कहूँगा कि मुझे वो जो मौका दिए गए, और जब उस पे वो टेस्ट पे जब मैं खड़ा उतरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हुई। सो एथिक्स इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ऑनेस्टी। थैंक यू। तो यही सवाल मैं सुहेल सर से पूछना चाहूँगा कि आपने भी एक ऐसी प्रैक्टिस को चुना, वो बहुत इसके अंदर ट्रेडिशनल और कॉमन नहीं थी, तो आपकी सोच क्या थी सर? आपका शौक था या इसके अंदर कोई एक ऐसा ड्रिविंग फोर्स था जो आपका पैशन था, वो आपको इस तरफ ले गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 99 में हम जब धोराजी से माइग्रेंट हुए सूरत, और उसके बाद मैंने दादा ग्रुप में, दादा सर्विस में, टाइम ऑफिस में जॉब स्टार्ट की मैंने। ओके। और वहाँ पे मुझे सिर्फ लाया गया था पर्टिकुलर एक काम के लिए, लेकिन मैंने मल्टीपल काम को चुना। मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि जितना काम दिया जाता है उतना ही करना, उससे ज़्यादा मत करना। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, फिर तो मैं एक लिमिटेशन मेरी रहेगी लाइफ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब 1500 रुपये की जॉब थी, और एक हारून चाचा के पीछे से साइकिल के पेडल मारता था, और हारून भाई आगे से। तो वैसे तो मैं साइकिल पे था, लेकिन मेरे हौसले आसमानों पे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यस, तो मेहनत का, जैसे फारूक भाई ने बताया कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अशरफ बाबा को, जिन्होंने
मेरी ये स्किल को तलाशा, मुझे बताया कि ये पर्टिकुलरली तेरे में स्किल है और तू लेबर लॉ एडवाइज़र बन सकता है। मेरे वालिदैन की दुआ से मेरे वालिद साहब ने खास करके मुझे कुछ 1 साल तक के लिए बताया कि तू ऑफिस भी ले ले और तू ये काम स्टार्ट कर। तो जब काम स्टार्ट किया तो ये काम और ये मकाम तक पहुंचाने वाले हैं मेरे कॉम्पिटिटर्स। मुझे मेरे कॉम्पिटिटर्स ने इतना परेशान किया, लेकिन मैंने एक ही काम किया कि उन कॉम्पिटिटर्स को डिफेंसिव राहुल द्रविड़ की तरह कभी भी अटैक नहीं करना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना है। सिर्फ जो भी बॉल आता है उसको आप एक वॉल की तरह सहन करते रहो। अल्लाह ताला एक दिन ऐसा लाएगा कि आप इतने पावरफुल बन जाओगे कि इतने भी ज़्यादा वार होंगे आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैंने देखी। और फारूक भाई पटेल जो अभी इन्होंने बताया कि 2000 करोड़ की माशाल्लाह कंपनी है, तो वक्त और मेहनत ऐसे रंग लाता है कि फारूक भाई पटेल को भी अपनी फाइल लेकर सोहेल के पास आना पड़ता है। तो वो लेवल आपको बनाना पड़ेगा कि फारूक भाई पटेल के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट अभी बने कुछ टाइम से पहले। तो उस लेवल को हासिल करने के लिए मेहनत का, डेडिकेशन का और सब्र का और कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। आज जो बच्चे शॉर्ट और इजी इनकम में जाते हैं, हर कोई इजी इनकम देखता है, लेकिन इजी इनकम ना तो टिकती है ना तो एक ब्रांड बनती है। तो मेहनत करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से आप देख सकते हैं कि आज हमारा लेबर लॉ एडवाइजरी का जो कंसल्टेंसी फॉर्म है वो सूरत में लीडिंग है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो अदर्स हैं, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कहते हैं कि यू आर द अल्हम्दुलिल्लाह लीडर। तो बस ये अल्लाह ताला ने मकाम हासिल किया। लेबर लॉ एक चीज़ मैंने क्या नोटिस करी आप लोगों से बात करने के अंदर, मुझे ऐसा लगा कि यार जो सक्सेसफुल आदमी है ना वो हम्बल बहुत है यार। वो पता नहीं इसके अंदर वो डेडिकेशन से हम्बल है या इसके अंदर उनको दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तो इसके अंदर एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी है, और भी इसके अंदर मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना वो इसके अंदर टू द पॉइंट और दे आर रियली हम्बल। एंड दिस इज द नाइस थिंग हमको अक्वायर करना चाहिए कि टू बी हम्बल एंड डेडिकेटेड। मोहम्मद सर, इसके अंदर एक सवाल मेरा असलम सर से है। सर असलम सर, इसके अंदर आपके मोटिवेशन स्पीकर, सॉरी वीडियोज हम देखते हैं, इसके अंदर कई सेमिनार्स हमने पर्सनली अटेंड भी किए हैं। आप यूथ को लेके काफ़ी कंसर्न रखते हैं। तो मेरा एक सवाल है यूथ को लेके कि यूथ, आज का यूथ है ना एक डे ड्रीमर है, वो सपने देखता है, उसके पास बड़े बड़े आइडियाज़ है, बड़ी बड़ी टर्म्स बात बोलता है, मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स बात करेगा, लेकिन वो सुबह होके वो एवरीथिंग फिनिशेस, वो आइडियाज़ जो है बिग आइडियाज़ मियर ड्रीम्स रह जाते हैं सर। तो वो आइडियाज़ को, वो ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे बदला जाए? आई थिंक ये सवाल सनी शायद बहुत अच्छे से रिप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसने एक आइडिया को सक्सेसफुली एक वेंचर में ट्रांसफॉर्म किया, तब्दील किया। सी, पहले यूथ को समझना जरूरी। हम बोलते हैं ये जेन जी है, जेन जी यानी जो 1996 के बाद पैदा हुए टिल 2012, ये जो जनरेशन है इसको हम नेटिजन बोलते हैं, सिटीजन बोलते हैं। क्यों? ये इंडिया के सिटीजन नहीं है, पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, यूएस के सिटीजन नहीं है, ये नेटिजन है। इनकी अपनी अलग दुनिया है, ये किसी देश को बिलोंग नहीं करते, ये डिजिटल दुनिया को बिलोंग करते हैं। इनको हम कहते हैं स्क्रीनेजर्स, हम इनको बोलते हैं डिजिटल नेटिव्स। द होल थॉट इज कि ये स्क्रीन पे बचपन से इतने बिजी है दैट दे आर डिस्कनेक्टेड टू द सोसाइटी, they are disconnected to the real world, they are disconnected to their own self। खुद से बात नहीं करते, पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे, ये बहुत वक्त अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, और वो भी लिमिटेड, और शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज्यादा बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में कम्युनिकेशन कम है। इसकी वजह से इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स या रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स ये इनके कमजोर होते जा रहे हैं। Now when they have an idea, they have to convey the idea, they have to sell the idea, they have to connect with people, and that is where they are struggling. So ये digital
प्लेटफॉर्म पे रहने से दुनिया में क्या हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन इनके पास बहुत है, लेकिन जो ह्यूमन स्किल्स है वो जितने शार्प होने चाहिए, जितने डेवलप होने चाहिए, जो मैंने और आपने बचपन में स्कैर्सिटी की वजह से गैजेट्स नहीं थे तो हम आराम से एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे. सो वी आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, वी आर गुड एट कनेक्टिंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप, जो इस जनरेशन के साथ प्रॉब्लम है. वन. दूसरा, इस जनरेशन के लिए कहा जाता है कि दे आर लुकिंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. इनको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, लाइफ में सब कुछ जल्दी चाहिए, इम्पेशेंस बहुत. So this is their characteristic. Now coming to idea and how to make it successful. जो यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपके दिमाग में आइडियाज है, बिजनेस के आइडियाज, स्टार्टअप के आइडियाज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आइडिया वैलिडेशन. कि जिस आइडिया को आप अपने दिमाग में इंक्यूबेट करके चल रहे हो, या जो आइडिया प्रेगनेंसी है आपके दिमाग में, तो अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ लेकिन दिमाग में कहीं वो कंसीव हो चुका है, इसको हम आइडिया प्रेगनेंसी बोलते हैं. पहले जाकर चेक करो कि उस आइडिया पे अगर पहले से कोई और काम कर रहा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम. जिस आइडिया पे आप काम करना चाहते हो, अगर दुनिया में किसी भी देश के किसी भी कोने में अगर कोई ऑलरेडी इस आइडिया पे आपसे पहले से काम कर रहा है, डोंट गेट इट. इट्स ए रेसिपी फॉर डिजास्टर. क्योंकि ऑलरेडी कोई उस स्पेस को लीड करने वाला है, क्योंकि आपसे पहले उसने काम शुरू किया है. वन. नंबर टू, डॉक्टर सी के प्रसाद कहते थे, एवरी अनसॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी इज अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो पहले ये चेक करो कि क्या आप अपने उस आइडिया के जरिए समाज का कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. पीने का पानी एक समस्या है. किसी ने एक ऐसा फिल्टर बनाया है कि हम बोलते हैं कि समंदर के पानी को मीठा पानी बनाएंगे, एंड अभी से एंटीसिपेटेड है कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर कोई होगा तो वो पानी के लिए होगा. बहुत इसकी डिस्कशन चल रही है. पीने का पानी एक समस्या है. अगर समंदर का पानी आप पीने का पानी बना रहे हो तो 70 रुपए पर लीटर का कॉस्ट आ रहा है, 70 रुपीज. कभी आता था. अभी किसी ने एक ऐसा फिल्टर बनाया है कि आप उसमें ड्रेनेज में यूज किया हुआ पानी भी डालो तो वो पीने का पानी बन के बाहर निकलता है एट 30 पैसे पर लीटर. तो दिस इज एन आइडिया. सो उनके दिमाग में जो थॉट था वो पीने के पानी की समस्या दूर कर रहे पूरी दुनिया के लिए. और बिल गेट्स हैज अडॉप्टेड दैट आइडिया एंड ही इज इन्वेस्टिंग अ लॉट कि इस आइडिया को कैसे बड़े स्केल पर पूरी दुनिया में स्प्रेड किया जाए ताकि आने वाले वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट अभी से अवॉइड किया जाए. प्राइमरी एजुकेशन इज अ प्रॉब्लम. हम सिटीज में रहते हैं, एक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो दूसरे में मिल जाएगा, दूसरे में नहीं मिला तो तीसरे में मिल जाएगा, नहीं तो सरकारी स्कूल तो है. लेकिन जस्ट इमेजिन 20,000 फीट की ऊंचाई पे एक गांव है जहां पे सिर्फ 70 लोग रहते, 70, और सिर्फ 7 बच्चे हैं. उनको कौन पढ़ाएगा? टीचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा? सो दुनिया में किसी ने इस प्रॉब्लम को समझा एंड प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक ऐप डेवलप किया है जिसमें 7th स्टैंडर्ड तक का कंप्लीट एजुकेशन सिर्फ 2 साल में बच्चा ले सकता है, विदाउट टीचर, विदाउट स्कूल, ऑनलाइन एंड फ्री. ओके. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऐप दुनिया की 60 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता है. नाउ दिस इज सॉल्विंग रियल टाइम प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी. सो बेसिकली अगर आपके दिमाग में आइडिया है तो पहले क्या आपका आइडिया इतना डायनामिक है कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो बेशक उसको चेस करना. जस्ट टू कंक्लूड माई आंसर, 2 टाइप के लोग हैं मार्केट में, एक विजनरी एंड दूसरे अपॉर्चुनिस्ट, मौका पर. विजनरी लोग किसी नए आइडिया के पीछे, जब कोई उसको चेंज नहीं करना चाहता, कोई उस पर पैसा नहीं लगाना चाहता, कोई उस पर वक्त नहीं लगाना चाहता, तब वो लगाते हैं. फर्स्ट मूवर्स क्योंकि वो देख पाते कि अगर इस आइडिया पे मैंने काम किया तो कल सोसाइटी में कितना बड़ा चेंज आएगा. राइट? दीज आर विजनरी पीपल. एक बार वो आइडिया सक्सेसफुल हो गया तो एक की सक्सेस को देख के दूसरा जंप करेगा, तीसरा जंप करेगा. ये मौका परस्त होगा. तो अगर आपका आइडिया मौका परस्ती वाला है, माई सजेशन, quit that idea because that will not lead you anywhere. If it is solving the real time problem, it's new, it's something different, then please chase it. And most important, सभी ने कहा हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सब्र का अल्टरनेटिव नहीं है. इनको पहले मौका मिला, बाद में इन्होंने अपने आप को एजुकेट किया.
सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. दैट इज हाउ यू कन्वर्ट योर आइडिया इनटू अ सक्सेस. थैंक यू. तो यहाँ पे इसके अंदर है ना फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज के बारे में सर ने बात की कि आपके पास कोई आइडिया है तो आप एग्जीक्यूट करो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज. हमारे पास इसके अंदर बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए एचडीएफ गोरो जैसे जो मौका परस्त थे और उन्होंने सक्सेस हासिल की. बट ओवरऑल इफ़ यू हैव गॉट एन आइडिया आप इसके ऊपर वर्क करिए और एक विजन के साथ काम करिए तो मे बी सक्सेस आपको मिल जाए. बट इसके अंदर एक चीज सर मैं असद सर से थोड़ा सा इसके अंदर डिसएग्री करता हूँ सर कि इसके अंदर अगर जो उनमें इतनी मेच्योरिटी होती एज के अंदर तो इसके अंदर शायद इसके अंदर हमारे सोसाइटी के अंदर इसके अंदर 500 फारूक भाई होते, 500 असलम सर होते 500 मन्नत भाई होते. सर वो मेच्योरिटी लेवल नहीं है सर. तो उसके लिए आप इसके अंदर वो मेरा कंसर्न था कि वो जाने कैसे. वी से दैट अपॉर्चुनिटी इज स्टैंडिंग एट योर डोर स्टेप, लेकिन वो दरवाजा खोलना है हमको और वो अपॉर्चुनिटी को लेना है वो हमको पता कैसे चले. सी ऑनेस्टली अब मैं आपकी इस पॉइंट पर डिसएग्री कर रहा हूँ. वन, आज की जनरेशन बिकॉज इट इज अ वेल इन्फॉर्म्ड जनरेशन, दे आर वेरी करेजियस, दे आर बोल्ड. ये किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं. सो ये जो हम बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस और मेच्योरिटी होगी तो वो कर पाएंगे, आई डिसएग्री टू दैट पॉइंट. सबसे पहले एक्चुअली हमको ये समझना पड़ेगा कि हम सब 1965 1970 की चिप्स है और ये 2010 और 15 की चिप्स है. ये हमसे बहुत एडवांस है. एक्सपीरियंस एंड विजडम का अपना वैल्यू है, बट उससे भी ज़्यादा हमें इनको सिखाना नहीं है, हमें इनको सीखना है, हमें इनको खुला आकाश देना है. ये बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं. कुछ इनकी कमियां हैं और कुछ इनकी स्ट्रेंथ है. हमें इनको अंडरस्टैंड करके इनको नर्चर करना है. जो इनकी कमियां हैं वहां हमें उनके साथ खड़ा रहना है और जो उनकी स्ट्रेंथ है उससे हमें सीखना है और उनको खुला आकाश देना है. Manal sir, a question for you. Just a minute, someone announcement has been made. Hello. Hello. Just an important announcement for the program that is Adapt the Changing Situation. जैसे इसके अंदर विजन के अंदर समझ लो कि आज इसके अंदर सर ने जैसे बताया कि कई लोगों को एक एज तक विजन नहीं होता है. बिल्कुल मतलब आई विल जस्ट टेक ऑन फ्रॉम व्हाट मिस्टर असलम मेंशन. देखिए एक बात ये है कि मैं अपने पर्सनल करियर के हिसाब से ही मैं बोल सकता हूँ. आप देखिए मेरा विजन क्या था और मैं क्या कर रहा था और मैं कहाँ पहुँचा और मैं कहाँ हूँ. So I think one is flexibility is extremely important because only if you explore will you know. Okay, there is a fair chance that you will fail. Okay, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप चांसेस है कि आप फेल होंगे, लेकिन चांसेस है कि आप पास हो सकते हैं. राइट? अब आप ये बोलेंगे कि ये फेल पास के चक्कर में जिंदगी निकल जाएगी. ऐसा नहीं होता है. यू स्टॉप समवेयर और वो नेचुरली होता है. अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना ईमान है तो वो अपने लिए बहुत ज़रूरी है और वो रखना ज़रूरी है. अगेन असलम सर ने जो बात की उसके ऊपर मैं थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रेच करूँ तो कहीं ना कहीं ये आज की जो जनरेशन है, मैं जब आई डील विद दीज पीपल. ओके, क्योंकि मैं इनके साथ काम करता हूँ. फॉर द स्टाफ दैट आई हैव टुडे, द जूनियर मोस्ट स्टाफ पर्टिकुलरली आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू हैंडल. रफ है, डायरेक्ट है. ओके, उनको कोई फियर नहीं, दे आर फियरलेस. सो एक तो उनको सब जल्दी चाहिए. You get your pace right and जब मैं उनसे okay, we'll pause for a second. मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज साइलेंस मेंटेन करें. गुलाम सर थोड़ा सा प्लीज साइलेंस मेंटेन करें. मैम आप बैठ जाए आप प्लीज. ओके, सो आज का जो जनरेशन का जो बेसिक चैलेंज है जो ऑलरेडी असलम सर ने बताया, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि भाई वो इतने इम्पेशेंट है और इतने हार्ड वायर्ड है. यानी कि बस फिक्स है दिमाग में कि ये करना है, इस तरह से करना है, ऐसे करना है. सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते हो अपने घर. ओके, एक है अपने ड्रीम को चेस करना. वी हैव अ लिविंग एग्जाम्पल हियर एंड आई मीन वेरी वेरी इंस्पायरिंग जो सनी की स्टोरी है. इनफैक्ट मैं सिर्फ जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा था एक छोटा इंट्रो जो मेरे लिए बनाया जा रहा था, तो मैंने कहा था कि मुझे ज़रा बताइए एक सैम्पल. इनका जब मैंने सैंपल पढ़ा ना तो मुझे लगा ये फेक सैंपल है. ऐसा 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 हो नहीं सकता है. ये तो जस्ट ऐसे किसी का रैंडम बना के दिया है एग्जाम्पल ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे एक इंट्रोडक्शन मेरा खुद का जो बनाना है वो कैसे बनाना है.
But when I actually heard the story from him, I was very impressed. So very few people have been able to achieve this. So this is what is called, chasing your dream. और वो जिद होती है, लेकिन एक वक्त आता है, जैसे हम देखते हैं टेक्नोलॉजी कितना एडवांस कर रहा है, हर चीज़ हर दिन बदल रही है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अगर आप इतने चेंजिंग एनवायरनमेंट में हार्ड रहेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, तो आप एक वक्त के बाद में रिडंडेंट हो जाएंगे, आप कुछ फिर हासिल नहीं कर पाएंगे। तो वक्त के साथ, हवा के रुख के साथ बदलना ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल मैं अपने पर्सनल लाइफ का इसमें ये दूंगा कि अभी रिसेंटली BNP पारिवार ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पर मुझे एक और नई जिम्मेदारी दी गई है, विच इज़ कॉल्ड डेटा प्रिवेसी। ये एक नया चैप्टर है और बहुत ही जल्दी इसका लॉ आने वाला है, और ये लॉ ऐसा होगा कि जो सबको हिला के रखे, हर किसी की लाइफ को टच करेगा। मैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका मतलब ये है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, इसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस डिवीजन का हेड बनाया गया। So again, this is my open-mindedness which has allowed me to succeed and which has allowed me to continuously succeed. So मेरी बस advice यही है कि भाई आप please flexible रहिए लाइफ में, just take it as it comes. Of course you have your plan, but at the end of the day don't be stuck on it. अगर मौका मिले और कहीं और direction दिख रहा है और लग रहा है कि वो सही है, तो make sure you explore. Thank you. Sir, moving on, sir, फारूक सर से एक मेरा क्वेश्चन था सर, आपको क्या मोटिवेट किया था सर, जब इसके अंदर एक आप बिल्ड होता है तो एक प्रोसेस होता है, तो आपके इस प्रोसेस के अंदर व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम व्हाट यू आर टुडे, और इसके अंदर आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इसके अंदर मोटिवेशन के बाद अपनी लाइफ जर्नी कैसे देंगे सर? मोटिवेशन जो अक्सर हमारी लाइफ में जो मैंने देखा है एज अ लेमैन, आई एम नॉट दैट मच एजुकेटेड लाइक मनन सर एंड असलम भाई एंड ऑफ कोर्स काबरावाला एंड दिस आवर प्रेसिडेंट साहब, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट एडवर्सिटी जब भी आपको आती है तो आदमी उससे ऊपर उठने की कोशिश हमेशा करता रहता है, और सोच जो है वो हमेशा ये कहती है कि मेरे पास जो है वो कहीं खो न जाए। इस वजह से आदमी, इंसान बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है, लेकिन हमेशा उल्टा सोचना है इसमें कि जब आप कंफर्ट जोन में हैं तो उसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप कंफर्ट जोन में हैं और इफ़ यू हैव अ गुड कार, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर मुझे ऑटो रिक्शा में घूमना पड़ा तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है। दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, हम ऐसा सोचते हैं। मैं कहता हूं कि वहां तो घूम सकता हूं मैं, लेकिन अगर मेरे पास प्राइवेट जेट हो तो भी मुझे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो ये सोच भी हमको लानी पड़ेगी। अक्सरियत में ये सोच में से हम गायब हो जाते हैं। जब एक स्टेज पे उठते हैं उसके बाद वो जो कुछ कमाया हुआ रहता है उसको हम बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश करते हैं, उससे वो वक्त जो है हमारा प्रोग्रेस को नहीं मिलता। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऑलवेज, मैंने यही सोचा जब 1994 में जब स्टार्टअप लिया तो इट वाज वेरी स्मॉल। मेरी कंपनी का टर्नओवर 2003 में 40 लाख का मेरा बैलेंस शीट था, जो इस साल 1500 करोड़ के ऊपर पहुंच रहा है। तो वो अगर वो 40 लाख के बैलेंस शीट में हो सकता है कि 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए कमाता हूँ मैं, अब उसको ही मैं रिस्क में न डालूं। यानी, और रिस्क जब कहते हैं तो हर आदमी सोच लेता है कि मैं आगे खड्डा है या नहीं है। Everyone is thinking and that way. अब दूसरी एक परेशानी क्या होती है कि जब आदमी स्पीड में शुरुआत करता है, स्पीड में जाना शुरुआत करता है, तो नेचुरली है, सुहेल साहब ने कहा कि बहुत सारे बम्पर्स आएंगे, बहुत सारे आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे। तो अगर आप स्पीड की जगह पे आराम से चलते हो तो वो 1 घंटे के बाद आएगा, 2 घंटे के बाद आएगा। लेकिन अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो हो सकता है कि एक दिन में 5-6 बम्पर आपके सामने आ जाए। लेकिन उससे हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। एक ही ये है कि एथिकल, मनन साहब ने कहा इस एथिकल
ईमानदारी के साथ में और ह्यूमन फर्स्ट, ये चीजें हमारे अंदर में और इस्लाम में ये चीजें सिखाई जाती है बाय दी बर्थ ओनली। तो ये चीजों को आगे रखते हुए अगर हमको कोई भी रिस्क लेना पड़े, हम लोगों को अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके, हमारी जात पे भरोसा करके इसके पीछे मेहनत भी करनी चाहिए। तो आज शायद सोसाइटी में बिलियनर की संख्या 10 है, वो कल उठ के 1000 तो मिनिमम होनी चाहिए। और हमारा मेरे ख्याल से मकसद यही है। मैं अभी भी चर्चा कर रहा था हमारे असलम भाई से कि विदाउट मनी नाना वगरनो नाथियों ने नाणे ना ताला, पैसा अगर नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आते हैं, और अगर पैसा है तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो पैसा तो हमको कमाना है, लेकिन वही एथिक्स के साथ हलाल तरीके से अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए और मेहनत करके। और दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी अभी भी है मौजूद जिसको लोगों ने देखी नहीं है या उस पर काम नहीं किया है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस तरह से मनन साहब, जिस तरह से काबरावाला कह रहे हैं, जिस तरह से असलम भाई कह रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें को ढूंढ सकते हैं, बहुत सारी चीजों को ढूंढ सकते हैं। और यूथ के लिए खास कि अर्ली स्टार्टअप ले लिया जाए और ईमानदारी से उस पर भी मेहनत की जाए, तो अल्लाह तबारक ताला हर चीजों को आपके सामने खोल के रख देगा। और कल का मुस्तकबिल जो है समाज का और सोसाइटी का, इंसानियत का, वो मेरे ख्याल से यही बैठे हुए लोगों में से पैदा हो सकता है इंशाअल्लाह। इसके अंदर मुझे ये समझ में आया कि our attitude towards life determines the life attitude towards you। एक इसके अंदर बहुत अच्छा जॉन मिचेल का कोट था। इसके अंदर जिंदगी के आपका जो डिटर्मिनेशन, आपका जो विजन जिंदगी की तरफ है, वही सेम आपको फीडबैक करेगा, वही रिफ्लेक्ट करेगा आपके इसके अंदर। कोई डाउट नहीं है कि जो आप सोचोगे इंशाअल्लाह वही मिलेगा। यानी सोच को बड़ी करने की बहुत ज़रूरत है, कंजर्वेटिव सोच में से निकलना है। पैराशूट जैसा तभी काम करेगा कि जब वो खुला होगा। हमारा दिमाग भी पैराशूट की तरह करे, बड़ा करे, जितने भी आइडिया, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज जो है एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाए, क्योंकि जितना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग में आएगी और उसमें से कोई एक आइडिया हमारा क्लिक होगा जो आगे चल के हमको बेनिफिट देने वाला बनेगा। बिल्कुल सही है। Sir, Sunny sir, I've got a question with you. Your career and life story has been like a roller coaster. So, did you ever feel the scare or did you feel down that when you failed in your journey? तो आपको ऐसा कभी felt that हाँ, okay, I'm afraid, I cannot, जैसे इन्होंने बताया था. So did you ever fail to be scared of your failures, and how did you overcome from this setback? That was more important. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मेरे दिमाग में एक ही था कि आई वांट टू एक्चुअली सिट इन ऑडियंस एंड लिसन टू देम। इतना इंटरेस्टिंग टॉक जा रहा है एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत स्टार्टअप इवेंट्स में हम जाते हैं वहाँ पे और यूथ फेस्ट में भी हम जाते हैं तो मोटिवेशन होता है, फाइनेंस की बात होती है, सक्सेस की बात होती है, बट इतना एथिक्स एंड ईमानदारी की जो बातें यहाँ हो रही है, आई थिंक बहुत लकी है, बहुत फॉर्चुनेट हम कि वे सेटिंग है। एंड आई हैव नो डाउट कि जो यूथ यहाँ पे बैठे जो सुन रहे हैं और जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बट वो खुश भी होंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट फेलियर्स, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने ये बताया था कि मैं 9th स्टैंडर्ड में भी फेल हुआ था मैथ्स में एंड 10th में 60% ग्रेड्स थे। जब मेरे फ्रेंड्स सबको कॉल करके पूछे थे मेरे 84% आए, 87, बहुत दुखी थे एंड मेरे पास तो कोई ऑप्शन था दुखी होने का बिकॉज मैं कॉम्पिटिशन में था ही नहीं। 60%। 11th में मैं IIT कोचिंग में गया तो वहाँ पे मुझे IIT क्या था वो पता भी नहीं था एंड आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ इट एंड 11th में आई फेल्ड इन फिजिक्स। 12th में 42% ग्रेड्स थे एंड देन आई वांटेड टू बी एक कोई कॉलेज में जहाँ पे मैं एरोस्पेस की डिग्री एरोस्पेस की पढ़ाई करूँ। इतने फेलियर्स पहले ही देखे थे
एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि अच्छे मार्क्स लाओ सिर्फ। उन्होंने एक ही चीज़, जब भी मैं घर जाता था या जब भी मम्मी से बात होती थी, एक ही चीज़ पूछते थे कि क्या नया सीखा और कितनों की हेल्प की। ओह ग्रेट। तो मेरे माइंड में ये चीज़ फिक्स था कि कुछ नया सीखना हर रोज़, जो आज भी मैं और मेरे टीम मेंबर्स भी 4:30 बजे हर रोज़ उठ जाते हैं और हर रोज़ अपनी लाइफ का एक पहला घंटा कुछ नया सीखने में देते हैं। तो वो आदत अभी भी है। तो जब हम लोग, और जब मैंने स्टार्ट किया तो ये एज ए क्लब था, मुझे स्टार्टअप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ पता ही नहीं था। तो अच्छी बात ये थी कि मुझे कोई चीज़ पता नहीं थी, एंड मैं जब ये स्टार्ट किया और हम लोग ने जब रॉकेट्स बनाना स्टार्ट किया तो पहले बहुत फेलियर्स आए। 36 रॉकेट्स हमने छोटे बनाने के ट्राई किए, वो सारे फेल हुए। एंड एक चीज़ डिस्कस हुआ था हमारे टीम में कि सक्सेस और फेलियर का डेफिनेशन चेंज करते हैं। अगर आप दो इंसान को बोलो कि आपको, एक को बोलो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, दूसरे इंसान को बोलो आपको 10 माले की बिल्डिंग चढ़ना है, अगर दूसरा इंसान 10 माले की बिल्डिंग पूरी चढ़ भी लिया और पहले इंसान ने सिर्फ 50% माउंट एवरेस्ट चढ़ा, किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा? 50% माउंट एवरेस्ट वाले के पास। तो अभी तक हम ये सोचते थे कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, अगर वो हमने पूरा कर लिया तो हम सक्सेसफुल है, अगर नहीं हुआ तो फेलियर है। तो हमने इसको चेंज कर लिया डेफिनेशन को। अकॉर्डिंग टू अस नाउ, अगर हम कोई काम करना चाहते हैं और अगर वो कंप्लीट नहीं हो पर अगर उसमें से कुछ नया सीखे, इट इज़ अ बिग सक्सेस। और अगर हम कुछ काम करते हैं और अगर वो हो गया पर उसमें से कुछ नया नहीं सीखे, दैट मीन्स वो बहुत ऑर्डिनरी काम था और उससे हमारा ग्रोथ नहीं हुआ। बट एक चीज़ है कि जब हम फेल होते हैं तो वी सेलिब्रेट आवर फेलियर्स। एंड मैंने आपसे सिनॉप्सिस, मेरा बायो नहीं सेंड किया था, मैंने डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लिखा था इंट्रोडक्शन, बट मेरा जो सिनॉप्सिस मैंने बायो बनाया उसमें मैंने सक्सेस नहीं, मैंने जितने फेलियर्स थे ना वो मैंने लिखे, क्योंकि मैं आई एम अ मैन ऑफ फेलियर। एंड इफ आई एम टॉकिंग राइट नाउ टू देम इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी सक्सेस, आई एम नॉट एट ऑल सक्सेसफुल, आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज मैंने लाइफ में बहुत फेलियर एक्सपीरियंस किया। एंड आई विल टेल यू, एंड मैं हमेशा एक लास्ट स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ। जब कोई बच्चा हमारे पास आता है रॉकेट सीखने में, उनसे एक ही चीज़ बोलता हूँ, इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आपको सीखना है रॉकेट्स कैसे बनाना है, सैटेलाइट्स कैसे बनाना है, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट से सीख सकते हो। द ओनली रीज़न यू शुड कम टू अस, आपको हमारे पास एक ही चीज़ के लिए आना है, ये सीखने के लिए कि रॉकेट्स कैसे नहीं बनाना है। बिकॉज हमें इतनी बार फेल हुए, वी कैन टेल यू व्हाट कैन गो रॉन्ग। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यही था स्पेस में, उन्होंने 10,000 बार ट्राई किया था, लेकिन ही सेड दैट ये 10,000 टाइम्स आई डिड नॉट फेल, आई केम टू नो दैट व्हाट नॉट टू डू। वेरी वेल सेड सर। सर एक यहाँ पे मेरे को ना बहुत इंटरेस्टिंग कोट इसके अंदर, एक्चुअली मैं आई वाज गोइंग थ्रू तो मैंने कुछ नोट किया था इसके अंदर। सर इट सेज दैट ability is what you are capable of doing, motivation determines what you do, and attitude determines how well you do it. तो इसके अंदर तीनों चीजें इसके अंदर आ गई कि इसके अंदर डिटर्मिनेशन भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट मोटिवेशन, इट इज नॉट जस्ट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। और यहाँ पे जितने भी बच्चे जो नौजवान बैठे हैं, अगर ये इंस्पायर हो रहे हैं अपने इसके अंदर, क्योंकि हम तो सनी सर भी फेल हुए तो हम भी फेल होकर इसके अंदर रॉकेट बना लेंगे, तो इसके अंदर आप गलत होंगे। मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, उसके लिए आपको ये 3 इंग्रेडिएंट अपनी लाइफ में डालने पड़ेंगे, तो ये आप सक्सेसफुल होंगे। आप सोशल मीडिया पे बैठ के बोलेंगे ये फेल हो गए तो ये भी बन गए तो मैं भी बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट अपनी लाइफ के अंदर डालने पड़ेंगे। डिटर्मिनेशन, इसके अंदर आपको आपकी एबिलिटी को पहचानना है, और इसके अंदर आपको हार्ड वर्क करना है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपको डालेंगे तो आप इसके अंदर यहाँ पे इन तक 50 तक अभी पहुंच पाए, या इनसे 150 टाइम्स भी आगे निकल जाए, ये आप पे डिपेंड करेगा। And be ready for failure. So be ready for failure. Don't be afraid and be ready for failure. It's a learning experience always. सर इसके अंदर जैसे आपने बताया था सर, you have an impressive client list. So being from a humble background, it is not easy to talk to, जैसे स्पीकिंग स्किल्स आपकी माशाल्लाह इसके अंदर बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल्स है,
तो आपका इसके अंदर क्या डिटर्मिनेशन था सर इसके अंदर, क्योंकि आपके क्लाइंट लिस्ट देखते हैं ना, तो एंड एज एन पर्सन वी टॉक टू यू, यू आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज, हाउ डिड यू मैनेज दैट? एक प्लेटफॉर्म से या एक लेवल से आपको लाइफ में हमेशा ऊपर जाने का एक एम्बिशन भी होना चाहिए और गोल होना चाहिए। तो जब सूरत में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे मन्नान साहब जैसे सीनियर प्रोफेशनल्स जो बीएनपी परिभाष में कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, तो मैं उन तक कैसे पहुंचूं? उन तक पहुंचने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि सूरत में इस लेवल के ना तो कोई कॉर्पोरेट्स हैं और अगर हैं भी तो जब मैं हजीरा या दहेज की गलियों में घूमता था तो मुझे ये था कि मैं कैसे एंटर हूँ, चाहे रिलायंस का देखो, बिरला का देखो यूनिट। तो अल्हम्दुलिल्लाह सनी सर ने जो बताया कि आपको एवरी ह्यूमन शुड कीप लर्निंग ऑन ईच डे एंड एवरी टाइम, तो सीखना और सिखाना ये एक ऐसी स्किल है, जिस दिन आप इसे समझ जाओगे और जिस दिन आप माइंड में ये लेके चलोगे कि दो चीजें हो, एक हो आपका फायदा, दूसरा हो समाज का फायदा, जो असलम सर ने बताया। मैं ये मानता हूं कि सोहेल सावानी एक ही आदमी क्यों हो इस दुनिया में, और मेरी जिंदगी में मेरी नजरों के सामने मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे मैं 100 सोहेल सावानी को पैदा करूं। वो 100 पैदा करने के लिए जो मैंने जद्दोजहद की, उसके लिए मैंने कुरान करीम में पढ़ा है कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो सूरह बकरा में है कि वो मल्टीपल फोर्स के अंदर में आपको वापस मिलता है। तो जिस दिन मैंने स्टार्ट किया डिफरेंट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से नॉलेज शेयरिंग करना, उस दिन मेरे कॉन्टैक्ट्स बने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी मेहनत करके पढ़ता था, कंटेंट को समझता था, लीगल कितना डिफिकल्ट है, और वो भी आपको 29 लॉ पढ़ने हैं। हर लॉ की अलग डेफिनेशन है, हर लॉ के कंप्लायंसेस अलग है, हर लॉ की फाइलिंग अलग है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं और प्रेजेंट करते हैं, कुछ देते हैं, तो अल्लाह ताला ने मुझे मल्टीपल फोर्स में देना शुरू किया। क्या देना शुरू किया? नॉलेज, एक कम्युनिकेशन स्किल। और जिस दिन ये जज्बा बन गया कि सोहेल को पैदा करना है, उस दिन क्या हुआ, अल्लाह ताला ने माइंड में ये रखा कि तू जो गलियों में घूमता था दहेज और हजीरा की, ये सारे लोग मैं तेरे कदमों में रखूंगा। और यही चीज हुई। आज अगर आप सवानी इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर लॉ एंड स्किल डेवलपमेंट को देखोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोविड के बाद सिर्फ 1.5 साल के स्पैन में 4000 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को, सेमी कॉर्पोरेट्स को हमने ट्रेन किया। सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया के अंदर में स्किल की कमी है, हुनर की कमी है। तो जब आप ट्रेन करते हो तो प्रधानमंत्री का भी ये लक्ष्य है कि स्किल डेवलपमेंट, उन्होंने एक अलग मिनिस्ट्री ओपन की। जितने अपने पास हुनर वाले बच्चे होंगे उतना हमारा एक लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा, और ये बच्चे एक बार सीखेंगे तो और बच्चों को भी सिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इंडिया का कोई कॉर्पोरेट नहीं है। मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि जो ब्लू चिप कंपनीज है बीएससी एनएससी की, वो ब्लू चिप कंपनी कितनी 50 होती है सर, ज़्यादा। तो मैं आज भी आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बस 40 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो। अच्छा, जिस गलियों में मैं जाता था हजीरा की, आज एलएनटी मुझे बुला रहा है एज ए स्पीकर, एज ए ट्रेनर, और मेरे सामने 25 और 30 डिपार्टमेंटल हेड बैठे हैं। तो जो अब्दुल मन्नान साहब कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब्दुल मन्नान साहब को अगर वो कंप्लायंस हेड है और एलएनटी में है, तो एलएनटी में मुझे बुलाया जाए तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी कि मैं इतने लेवल के लोगों के सामने मुखातिब हूँ और उनको ट्रेन कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने ये जो ट्रेनिंग की और ये जो देने की हर एक मखलूक के ऊपर
जो जिम्मेदारी सौंपी है, वो जिम्मेदारी जिस दिन हमारा यूथ शुरू कर देगा, सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ मुझे करोड़पति नहीं बनना है, क्यों ना मैं अपने आसपास की पूरे कबीले को, पूरी सोसाइटी को करोड़पति बनाऊं। सब खुश होंगे, सब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पेश आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन देना शुरू किया, उस दिन अल्लाह ताला ने ये सारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को कदम में रख दिया। There's a famous quote by Benjamin Franklin. He says that, tell me, I will forget. Teach me, I will remember. And teach me, I will remember. And involve me, I will learn. So, यहाँ पे पैनलिस्ट जितने बैठे हैं उन्होंने बोला है कि सिर्फ सक्सेस इज नॉट अबाउट सेल्फिशनेस, सक्सेस इज अबाउट गिविंग टू द सोसाइटी, इन्वॉल्विंग द सोसाइटी। तो ये इसके अंदर सक्सेस इज नेवर सेल्फिश। आई वॉन्ट टू एड वन पॉइंट, सारे यूथ अच्छे से सुने। स्टडी देन अटेम्प्ट, फेलियर, attempt, loss, attempt, success. Keep learning, become the supreme. Give training, share knowledge, create leaders, leave a legacy. My next question is for असलम सर। असलम सर, इसके अंदर है ना, फेलियर्स के बारे में तो काफ़ी लोग बात करते हैं कि फेलियर होते हैं तो इसके बाद फेलियर के बाद उठना चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, दिस एंड दैट। अभी एक नवा ट्रेंड देखा गया है कि अर्ली सक्सेस को न्यू जनरेशन जो है ना वो नहीं इसके अंदर संभाल पा रही है। एंड वो जो इसके अंदर अर्ली सक्सेस मिलती है वो साथ में एरोगेंस लाती है। अर्ली सक्सेस इसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी लेके आती है, और वो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सक्सेस जो उनको एज एन गिफ्ट मिली होती है वो इसके अंदर खत्म हो जाती है, एंड दे आर बैक टू द ग्राउंड जीरो। सी इसका जवाब मैं अपने रिलीजन से कनेक्ट करता हूँ। हम सजदा करते हैं, राइट? नमाज में, प्रेयर्स में हम अपने सर को झुकाते हैं। मैं कई बार लोगों को पूछता हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो बोलते हैं रिस्पेक्ट। किसी दरगाह के पास से निकले, मंदिर के पास से निकले, सर झुकाते हैं तो रिस्पेक्ट के लिए। बोला अल्लाह या भगवान आपकी रिस्पेक्ट का मोहताज नहीं है, इतना छोटा नहीं हो सकता इसका मतलब। सो someday a learned person, a wise person shared this thought with me, and I really appreciate that thought. वो बोलते हैं कि जब हम सर झुकाते हैं, अपना सजदा करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, हम एक्चुअली ये कन्वे करते हैं कि मेरे इस शरीर में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज अगर तुमने कोई दी है तो वो है मेरी अक्ल, और वो यहां है। इस शकल को मैं तेरे सामने झुकाता हूं और ये इकरार करता हूं कि मैं तेरे आगे कुछ, मैं जो हूं तेरी वजह से, हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा मुझे गाइड करना, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, मैं कहीं लाइफ में किसी प्रॉब्लम के आके झुक ना जाऊं। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ प्रेयर। नाउ ब्रिंगिंग इट टू रियल लाइफ। सो जितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, उतना ही शायद इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग आवर फेथ, प्रैक्टिसिंग इट विद इट्स एसेंस, वन। दूसरा, इवन इन बिजनेस वर्ल्ड, EI, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, उसकी बहुत वैल्यू है आज। डैनियल गोलमैन ने इस पर बहुत रिसर्च की थी। कहा जाता है कि जो बिजनेसमैन थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और एकदम से पैनिक करके उसका एनर्जी ड्रॉप हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और थोड़ी सक्सेस मिली तो ऑटोमेटिक एकदम से एक्साइट हो जाता है, जिसका अपनी भावनाओं पर, अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट टर्म सक्सेस शायद एंजॉय कर लेगा, बट हिज लाइफ इन टोटलिटी विल नेवर बी सक्सेसफुल। दैट स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, mental stability, that attitude stability is very, very important. Third, जो यूथ है, जब तक आप खुद कमाना शुरू नहीं करते, तब तक आपकी लाइफ
किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, आपके माँ बाप पे। हम कितने लोगों का योगदान लेकर बड़े होते हैं। वो टीचर्स जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, वो टीचर्स जो हमें मदरसे में पढ़ाते हैं, जो रिलीजन सिखाते हैं, हमारे माँ बाप, उनकी सेक्रीफाइसेस, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां तक कि वो किसान जिसने खेत में अनाज उगाया, जिसको खा के आप बड़े हुए। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोगों के योगदान से हम इस उम्र तक पहुंचे। सो जब सफलता मिलती है तो याद रखना कि जब एक एज थी आपकी लेने की, इनफैक्ट अब आपकी देने की बारी आई है। अभी तो आपने सोसाइटी का जो कर्ज है आप पे, उसको चुकाना बाकी है, और कर्जदार आदमी ईगो नहीं रख सकते। सो दैट फिलॉसफी, दैट आइडियोलॉजी इज वेरी स्ट्रांग। एंड अगर इस आइडियोलॉजी को यूथ में नर्चर किया जाए तो हमारा यूथ बहुत बैलेंस होगा। लुक एट सनी, लुक एट मनन, एवरीबडी ओवर हियर, फारूक भाई। आदमी जितना लाइट होता है उतना ऊपर उठता है। और इन्होंने शायद बोला था, दे आर वेरी हार्ड वायर्ड। जितना हेवी रहोगे उतना नीचे की तरफ जाओगे, जितना लाइट रहोगे ऊपर उठोगे। So, sir, we would like to take the questions from the audience as well. We were discussing, it was a healthy discussion. Thank you for your time, sir. Thank you once again. I just wanted to ask if anyone from the audience has a question. Someone over there also has got one question. We will declare open yes, house. start with it, sir. We will declare open house for questions. I just wanted to kick off with, I was just roaming around and listening to people, what they think about this panel discussion. और एक फादर और सन का कन्वर्सेशन था इसका, ठीक है। तो बेटा बोला, पापा अब मेरे को क्या बोलते हो, सनी काबरा वाला के 36 रॉकेट फेल हो गए और आप मेरे को एक प्राइज के लिए बोलते हैं, तो सनी यू पॉपुलराइज फेलियर नाउ, सो यू आर काइंड ऑफ अ रॉक स्टार अराउंड हियर, आवर किड्स रियली लव यू एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर एज अ यूथ आइकन। एनी क्वेश्चन? यस सर। પર્ટિક્યુલરલી સનીભાઈ કાદરાવાળાને અને અસલમભાઈ ચારણિયાને એક સવાલ પૂછવા માંગુ છું। આ બેઝિક ક્વેશ્ચન છે। અમે એ જાણવા માંગીએ છીએ કે બેઝિકલી આફ્ટર 12th સ્પેશિયલી સ્પેસ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, ન્યુક્લિયર સાયન્સ, ફૂડ સાયન્સ, એમાં ઇન્ડિયા લેવલે કઈ કઈ સારી સારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એ તમે બતાવો, અને એમાં એડમિશન લેવાનો રસ્તા શું છે, કઈ પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ આપવી પડે એ થોડું બતાવશો તો સ્ટુડન્ટ્સ ભેગા થયેલા છે એને બહુ હેલ્પફુલ થશે। સો ન્યુક્લિયર મતલબ સાયન્સની કોઈ પણ ડોમેનમાં જવું હોય કે આપણી પાસે ન્યુક્લિયર સાયન્સ છે, જેમ કીધું સ્પેસ છે, એસ્ટ્રોનોમી છે, એસ્ટ્રોફિઝિક્સ છે, આ બધા માટે જે આજે અમે ફિઝિક્સ ને મેથેમેટિક્સ જે અમે યુઝ કરીએ છીએ એ 8th સ્ટાન્ડર્ડથી લઈને 12th સ્ટાન્ડર્ડનું જે મેથ્સ હોય છે એ જ બહુ જ કામ આવે છે। તો હું હંમેશા જ્યારે બી યુથ સાથે વાત કરું એક જ વસ્તુ કહું કે ફંડામેન્ટલ્સ પર બહુ જ વધારે ફોકસ કરું। એટલે તમારે આગળ જઈને કોઈ પણ કોલેજમાં જાઓ, તમે કોઈ પણ કંપની જોઈન કરો, પણ તમે 8th થી 12thનું ફંડામેન્ટલ્સ ફિઝિક્સ અને મેથેમેટિક્સ બહુ સારી રીતે આવડશે તો તમે ઇઝીલી એડમિશન પણ મળી શકે છે અને તમે રિસર્ચમાં પણ જઈ શકો છો। હવે કોલેજીસની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયામાં બહુ જ નોન કોલેજીસ બધાને ખબર છે, IIT છે, NIT છે, જેમાં લિમિટેડ સીટ્સ હોય છે અને એમાં ટ્રાય કરવું જોઈએ, પણ એના સિવાય બીજી છે આયુકા કરીને પુણેમાં। તો આયુકા પુણેમાં છે અને ત્યાં એસ્ટ્રોનોમી અને એસ્ટ્રોફિઝિક્સનું ઘણું કામ થાય છે અને એ લોકો ત્યાં સાયન્સ સેન્ટર પણ છે, ત્યાં સ્કૂલ સ્ટુડન્ટ્સને ડેમોન્સ્ટ્રેશન અને એ લોકોને એક્ઝામ્પલ્સ બધા આપીને શીખવાડવામાં આવે છે। એના સિવાય બેંગ્લોરમાં એક કોલેજ છે જેનું નામ છે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એસ્ટ્રોફિઝિક્સ IIA, જે પણ બહુ જ એક્ટિવ છે। એ લોકો બલૂનના થ્રુ સ્પેસમાં લોન્ચ કરે છે નાના એક્સપેરિમેન્ટ્સ, અને IISc અને IIST કરીને પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે। આના સિવાય હું બીજું એક એક્સ્ટ્રા એડ કરવા માગું છું, જે છે કે એક ટાઈમ હતો જ્યારે આપણે પૂછે ને આપણે દાદાને કે તમે કઈ રીતે અર્ન કરતા હતા, એ લોકો કહેતા આપણે કે એ ટાઈમે પીપલ યુઝ ટુ પે અસ બેઝડ ઓન કે કેટલા કલાક આપણે કામ કરીએ છીએ, તો એ ટાઈમે આવરલી બેઝિસ પર આપણે પે કરવામાં આવતું। પછી એક ટાઈમ આવ્યો જ્યારે સ્કિલના બેઝિસ પર લોકોને પે કરતા હતા। આ જે જનરેશન છે ને એમાં ચેન્જ થઈ ગયું છે, ખાલી સ્કિલ નહીં પણ તમે એના બેઝિસ પર પે કરવામાં આવે છે કે કેટલું ટફ છે તમને કંપનીમાંથી રિપ્લેસ કરવાનું।
તો હંમેશા કહું કે ખાલી ફિઝિક્સ મેથેમેટિક્સ નહીં પણ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ થઈ ગયું, ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાનું, કઈ રીતે ક્વેશ્ચન્સ પૂછવા જોઈએ. ત્રીજું કે પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન કઈ રીતે આપી શકો છો. પછી નેટવર્કિંગ કેવી રીતે કરવાનું, લોકો સાથે વાત કેવી રીતે કરવાનું, અને સોશિયલ મીડિયાનો સારો યુઝ, જેમ કે લિંક્ડઇન જેવું પ્લેટફોર્મ છે, તમે કોલેજમાં આવો પછી અકાઉન્ટ બનાવીને ત્યાં તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકો સાથે જોડાવાનું, બિકોઝ એ લોકોની ઇન્ટર્નશિપ છે, રિસર્ચ પ્રોગ્રામ છે, બધા પોસ્ટ અપલોડ કરે અને ત્યાંથી તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી શકે, તમને નેટવર્કથી ત્યાં કામ પણ મળી શકે. તો એ બધું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એક ટાઈમ હતો જ્યારે કહેતા હતા કે સો ઇફ યુ આર જેક ઓફ ઓલ ટ્રેડ્સ માસ્ટર ઓફ નન, બટ આ જનરેશન છે જ્યાં યુ નીડ ટુ બી જેક ઓફ ઓલ ટ્રેડ્સ માસ્ટર ઓફ વન. મતલબ ફિઝિક્સ મેથ્સમાં ચેમ્પિયન બનવાનું છે, સાથે બીજી બધી સ્કિલ્સ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Next question here. I wanted to add something. Yeah, sure. Sorry. I also had- I would Okay. like, sorry. ફોર્મલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ, કોલેજીસની ઇન્ફોર્મેશન સનીએ આપી. હું થોડો હવે The other side of the coin. other side of the coin would like to share. સિંગ્યુલારિટી યુનિવર્સિટી, આઈ ડોન્ટ નો કેટલા લોકો ઓળખે છે. દુનિયાના 52 દેશોમાં આ લોકો એજ્યુકેશન આપે છે, સિંગ્યુલારિટી યુનિવર્સિટી. પણ કોઈ દેશની સરકાર એમના એજ્યુકેશનને સર્ટિફાઈ નથી કરતી, માન્યતા નથી આપતી. શું કામ? આ લોકો દર મહિને પોતાનો આખો કોર્સ ચેન્જ કરે છે, કોન્ટેન્ટ ચેન્જ કરે છે, કેમ કે દુનિયા બહુ ઝડપથી ચેન્જ થઈ રહી છે. 1970માં વર્લ્ડ નોલેજ દર 10 વર્ષે ડબલ થતું હતું. એ ન્યૂ નોલેજ ડેવલપમેન્ટની સ્પીડ હતી. 2010માં વર્લ્ડ નોલેજ દર 11 કલાકે ડબલ થતું હતું. તો અત્યારે કદાચ દર કલાકે વર્લ્ડ નોલેજ ડબલ થાય છે. એમાં 3 મહિને અગર તમે કોર્સ ચેન્જ કરો તો ઇટ ઇઝ સ્ટીલ સ્લો. સો સિંગ્યુલારિટી યુનિવર્સિટી એ કોઈ દેશની કોઈ ડિગ્રી નથી, એક ઓપન યુનિવર્સિટી છે. એ લોકો વેકેશનના પીરિયડમાં કોલેજીસના હોલ્સ ભાડે લઈને એડ્યુકેશન આપે છે. પણ આની પાછળ જે માઇન્ડ છે, જે આ કોર્સિસ ચલાવે છે, ડૉક્ટર સલીમ ઇસ્માઇલ, જેણે ધી એક્સપોનેન્શિયલ ઓર્ગેનાઇઝેશન નામની બુક લખી છે, આખી દુનિયા એને રેકગ્નાઇઝ કરે છે માણસને. પીટર ડાયમંડિસ, જેને બોલ્ડ અને અબન્ડન્સ નામની બુક્સ લખી છે. ડૉક્ટર સલીમ ઇસ્માઇલ, પીટર ડાયમંડિસ, રિચર્ડ બ્રાન્સન, જે વર્જિનના ફાઉન્ડર છે, આવા લોકો આ એસયુની પાછળ છે. સો એસયુ એક અલગ પ્રકારની યુનિવર્સિટી છે અને આજના સમયનું સૌથી લેટેસ્ટ વોટ એવર ઇઝ નેસેસરી એ એજ્યુકેટ કરે છે. સો એ ડિગ્રી નથી, પણ એડ્યુકેશનનો કદાચ વન ઓફ ધ મોસ્ટ પ્રીમિયમ ફોર્મ હું માનું છું. 1. સેકન્ડ, આજકાલ ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે કે જે ડિગ્રીની ઉપર ઓલ્ટરનેટ એડ્યુકેશન ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે. મારે ફૂલ ફ્લેજેડ એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી નથી જોતી, મને ફક્ત રોબોટિક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, ત્યાં મને ફક્ત રોકેટરીમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. જેને રોબોટિક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, આજે ઓનલાઈન કમ્યુનિટીઝ છે. ઓનલાઈન કમ્યુનિટીઝ ફક્ત રોબોટિક્સ પર રિસર્ચ કરવાવાળા 70,000 એન્જિનિયર્સ એ કમ્યુનિટીમાં મેમ્બર છે અને બધા એકબીજાને હેલ્પ કરે છે. કોઈને સ્નેક સ્ટાઇલનો રોબોટ બનાવવો છે, કોઈને કોઈ બીજા પર્પઝ માટે રોબોટ બનાવવો છે. એટલે આવા સ્પેશિયલ ઇન્ટરેસ્ટ ગ્રુપ્સ હવે ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. ત્યાંથી જે બચ્ચાઓને શીખવા મળે છે, સોરી ટુ સે, કોલેજીસમાં શીખવા નથી મળતું. સો ઇવન ધીસ ઇઝ ઓલ્ટરનેટ ફોર્મ ઓફ એજ્યુકેશન. મારો અસલમભાઈને એક સવાલ છે. આપ કહો છો કે 2010માં 11 કલાકે નોલેજ ડબલ થતું હતું. એના ઉપરથી એક એવું તારણ લઈ શકીએ કે દર કલાકે તમે કહો છો કે નોલેજ ડબલ થાય છે. તો અમારા એવા ભાઈઓ કે જેમણે 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, 25 વર્ષ પહેલાં ભણતર પૂરું કર્યું હતું, એના પછી એમણે ચોપડી હાથમાં લીધી નથી, તો એ અત્યારે એમને તમે કઈ જગ્યાએ જુઓ છો? કારણ કે ચોપડી આપણે વાંચવી, આપણે શું સમજીએ છીએ, આપણે 10મું ભણ્યા, 5મું ભણ્યા, 8મું ભણ્યા, હવે આપણે ભણવાનું નથી, આપણે મોટા થઈ ગયા. તો એને તમે આ પર્ટિક્યુલર તમારા સ્ટેટમેન્ટથી કેવી રીતે કનેક્ટ કરશો અને અમારા સમાજને આમાં પર્ટિક્યુલર શું સંદેશો આપશો? એક લાઈનમાં એક મારો ફેવરેટ કોટ છે. આની પહેલાં બી મેં આ જ કમ્યુનિટીના બીજા ઇવેન્ટમાં એ આપ્યો હતો. દેટ વિલ સમરાઇઝ એવરીથિંગ. નેવર સ્ટોપ લર્નિંગ ઇન લાઈફ because life never stops teaching. અને જેને લાગે છે કે એને બધું આવડે છે, MBA મને બધું આવડે, એમણે શીખવાનું બંધ કર્યું છે. પણ તમારી આસપાસ તમારા કોમ્પિટિશન, સોસાયટી, ધ નેક્સ્ટ જનરેશન, એમણે શીખવાનું ચાલુ રાખ્યું છે, એ તમને પાછળ મૂકી દેશે.
હાસ્યામાં મુકાઈ દેશો. So please follow this. Never stop learning in life because life never stops teaching. સર અમે અહીંયા ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ પણ લાવ્યા છીએ, એટલે જે ગર્લ્સ લેડીઝ એન્ડ જે આપણા વડીલ છે તે લોકો પર જો આજે બી એવી ઈચ્છા થતી હોય ભણવાની, સ્કિલને તલાશવાની એને નિખારવાની, તો ઘણા બધા સ્ટોલ્સ છે એનો લાભ પણ લઈ શકે છે. Your question, Aditya. हम लोग छोटा सा सर्विंग कर रहे पिछले 4-5 साल से नुजुम सोलर के अंदर. हम लोग का भी सोलर पावर कंपनी है. आपने बराबर सुन भी नहीं पा रहे, थोड़ा जोर से. या माई सेल्फ यासिर कंदोई फ्रॉम नुजुम सोलर पावर कंपनी. ओके, आपने जैसे बताया 2004 का एक किस्सा, तो हम लोग भी आपके 2005-06 में आप जहाँ होंगे वहीं पे हैं. तो मैं आपसे थोड़ा गाइडेंस चाह रहा हूँ कि आप 2005-06 से 2022 में आप इतना ऊंचे पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो, और आप एक बार 1-to-1 टाइम दोगे समझने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि आपकी सेम इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा हूँ मैं भी. ऑफिस देखी हुई है और उनसे एड्रेस ले लेना, आप वहाँ पर आके समझ लेना. उसके बावजूद भी मैं कुछ ब्रीफ आपको दे देता हूँ. सोलर का मैं कोई इंजीनियर नहीं था, न सोलर मेरे पल्ले कभी पड़ी थी, लेकिन सिचुएशन ने मुझे सोलर में जब डाला तो प्रैक्टिकल भी किया, उसकी पढ़ाई भी पीटीपी यूनिवर्सिटी जाके की, उसके बाद 2012 में शुरू किया, तब जाके यहाँ पर हैं. यानी सोलर जो दुनिया करती है वही करते हैं हम, लेकिन उसका तरीका दूसरा है. आपको भी वही सीखना है कि किस तरह से उसका तरीका बदला जाए. बाकी चीज़ कोई अलग नहीं है, सेम ही चीज़ है. जैसी सोलर की प्लेट दूसरों की होती है ऐसी ही अपनी है, बल्कि दूसरों की होती है, वही लेके आके हम लोग डिफरेंट तरीके से उसको मार्केटिंग करके, उसको एग्जीक्यूट करके उसको लगाते हैं और 25 साल तक संभालते हैं. ठीक है, तो आप आइएगा और आपको पूरा गाइड मिलेगा. और आपके अलावा भी जो लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं, हमारे यहाँ पर कोसंबा में एक कोर्स ऑलरेडी चल रहा है सोलर के बारे में, वहाँ पर भी आप उसका ये कर सकते हैं. प्रैक्टिकल करने के लिए भी हमारे सोलर फार्म खुद के हैं, तो वहाँ पर भी आइएगा. हमारे बहुत सारे आपकी कम्युनिटी के लोग हमारे साथ पार्टनरशिप में भी है, उन लोगों से भी आप गाइडलाइन ले लीजिएगा जो पहली रो में बैठे हुए कहीं कहीं पर, तो वो लोग भी आपको गाइड करेंगे कि आप चले जाओ. और हम आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं कि विदिन 2 या 3 मीटिंग में इंशाल्लाह इतना तो कर ही पाओगे आप लोग कि आराम से महीने के 5-10 लाख तो आप कमा ही लोगे. इंशाल्लाह. Next question, then we have Anyone or someone from there? मेरा नाम खमीसा मोहम्मद जुनैद है, मैं परभनी महाराष्ट्र से हूँ. मैं असलम सर से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ. सर, अभी जैसा आज का जो सिनेरो है हमारा हिंदुस्तान का भी देख लें या अगर पूरे जो है वर्ल्ड का अगर हम देखें, तो इसके अंदर आज सिर्फ एजुकेट होना जो है काफ़ी नहीं है, आपको टैलेंटेड भी होना ज़रूरी है. क्योंकि अभी कई ऐसी कंपनीज हैं जो आपको डिग्री भी नहीं पूछ रही है, बगैर डिग्री के आपके टैलेंट को देखकर आपको जो है जॉब दे रही है. और जैसा आप लोगों के भी डिस्कशन में भी सामने आया, तो टैलेंट होना बिजनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि आप 7th तक ही आपका एजुकेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट जो है एजुकेशन से ज़्यादा आज पावरफुल है. तो टैलेंट के ऊपर थोड़ा सा आप बताएं कि यूथ के अंदर वो टैलेंट कैसा है जो आज ह्यूमैनिटी के लिए जो ज़रूरी है. क्योंकि समाज के लिए हम लोग रह रहे हैं, समाज के अंदर है, तो समाज के वास्ते हमारे अंदर वो कैसे उनके जज्बात और उनका दर्द हमारे अंदर आए, उसके लिए थोड़ा सा आप गाइडेंस करें. सभी के लिए है. टैलेंट हमारे यूथ में कैसे आए, ये सवाल ही गलत है. यूथ में ऑलरेडी टैलेंट है, हमने पहचानना है. एक्चुअली हमको लगता है कि हमारे बच्चों के पास कुछ कमी है, उनको कुछ नहीं आता है. ये हमारी सोच है, इसलिए हम उनको वो देना चाहते हैं जो ऑलरेडी उनके पास है और उनको नहीं चाहिए. उनको सही माहौल चाहिए, सही नर्चरिंग चाहिए. नेवरदलेस कुछ बच्चे, सी मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, गरीबी से आए हैं, अलग अलग माहौल से आए हैं, छोटे टाउन से आए हैं, कभी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कभी एक्सपोजर की कमी होती है. सो इनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इनके साथ जरूर हमें कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए. इंडस्ट्री एक्सपोजर इनको कैसे मिले, इनको
इनको सिर्फ दुनिया दिखा दो, बाकी ये खुद कर लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता था बिजनेस ट्रेनिंग, तो 7 बिजनेसमैन को सूरत से, मैं टेक्सटाइल नेशनल के बिजनेसमैन थे, उनको मैं मोरबी लेके गया, सौराष्ट्र की विजिट पे लेके गया, गोपाल नमकीन लेके गया। गोपाल नमकीन सन 2009 में सालाना टर्नओवर 2 करोड़, 2009 में, 2013 में 225 करोड़, पिछले साल 1500 करोड़। जब वो फैक्ट्री देखी तब उनको पता चला कि बिजनेस ऐसे भी होता है। और बिजनेस मॉडल क्या था, यहां से रॉ मटेरियल एंटर करता है, 3 घंटे में फिनिश गुड बन के डिस्पैच होता है, कोई इन्वेंट्री ब्लॉकेज नहीं, लीन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, लीन प्रिंसिपल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना 1 रुपए का उधार कभी किसी को देते हैं, ना किसी से 1 रुपया उधार लेते हैं। सो रॉ मटेरियल अंदर आता है, शाम तक जितना आया शाम को पेमेंट होता है, माल 3 घंटे में डिस्पैच होता है, उससे पहले पार्टी का पेमेंट आ जाता है और उसी पैसे से शाम को पेमेंट हो जाता है। नाउ इनको सिर्फ ऐसे फैक्ट्रीज दिखा दो, इनको ऐसे बिजनेसमैन से मिलवा दो, फारूक भाई के साथ बिठाओ, ये सक्सेसफुल लोगों के साथ बिठाओ, ये अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मेहरबानी करके उनको वो देने की कोशिश मत करो जो उनको नहीं चाहिए, उनके पास ऑलरेडी है। There's a question from the ladies, please. असलम भाई के ही जवाब को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूं कि पहले हम लोग ये पूरी दुनिया में अभी एक ट्रेंड चला है कि अभी विश्वास किस पे रखे। अफरोज भाई, सब पूरी दुनिया में ऐसा कह रहे हैं कि विश्वास किस पे रखे, तो बोले विश्वास की मात्रा घट गई है दुनिया में से, हम किसी पे भी भरोसा करते हैं वो हमारा भरोसा तोड़ देता है, ऐसा हम मानना शुरू कर दिए। एक्चुअली करना क्या है, उल्टा हुआ है। हम लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया। हमको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। कितने भी विश्वास टूटे, हमको विश्वास बार बार करना पड़ेगा। यूथ के साथ भी, आज वो बच्चा फेल हुआ, कल और करेगा, परसों और करेगा। विश्वास रखते जाओ, इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो, मेरी लाइफ भी, ये जो हमारे काबरा वाला कहते हैं ना, कम से कम 32 बिजनेसेस किए हैं मैंने, जब जाके यहाँ पर बैठा हूँ। सो सक्सेस तो तभी बच्चा दिखाता है कि उस पर विश्वास रखा जाए। यानी हमको विश्वास रखना, यानी विश्वास करना पड़ेगा। कहने का मतलब विश्वास अब किस पे रखे ऐसा नहीं होता है। आप उसको आगे चलाते रहो, उसको उड़ने दो, इंशाल्लाह ही विल बी और सी विल बी डू समथिंग गुड। एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूँगा। हर समाज में मैंने देखा है, सोसाइटी में काफ़ी एनजीओज है, स्कॉलरशिप्स वगैरह देते हैं। दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी उन बच्चों पे जो टैलेंटेड है, पढ़ना चाहते हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे। अगर मेरा बस चलता तो मैं एक और टाइप की स्कॉलरशिप स्टार्ट करता, स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप नहीं। बच्चों को अपने एजुकेशन की फीस कैसे दे सकते हैं उसमें सपोर्ट करना और बात है। इनफैक्ट अगर मेरा बस चले तो मैं 10-12 के बच्चों को दुनिया घूमने ले जाऊं, उनको एक्सपोजर दिलाऊं कि दुनिया कैसे ऑपरेट कर रही है, अलग अलग इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट कर रही है, इटाली किसमें स्ट्रेंथ है, जर्मनी की स्ट्रेंथ किसमें है, चाइना की स्ट्रेंथ किसमें है। अगर ये दिखा के ले आओ ना, ये पूरी दुनिया को रूल करे। एक्चुअली ये एक्सपोजर हमारे बच्चों को नहीं है और ये शायद सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। इनको दुनिया के सामने एक्सपोज कर दो, इनकी सोच खुल जाएगी। बाकी इनबिल्ट अंदर रॉ मटेरियल है। यहाँ से कोई क्वेश्चन है शायद? From the ladies. Yeah, please. Your way of handling criticism when it comes to failures. बेटा लेडीज की तरफ से आता है तो ये हकीकत में सिल्वा, ये कम्युनिटी को बहुत ऊंचे जाना है, ये तय है, ये पक्का है। फेलियर जो होता है वो एक्सपीरियंस होता है। फेलियर नाम का वर्ड ही गलत डिक्शनरी में डाल दिया गया है। पहले तो ये समझ लो, फेलियर इज नथिंग बट द एक्सपीरियंस यू गेन। एक दूसरा की क्रिटिसिज्म, जितना भी क्रिटिसिज्म होता है हमेशा कहते हैं कि उन्हीं जो पत्थर या जो ईंटें हमको लगती है, उन्हीं ईंटों और पत्थर से अपनी इमारत को मजबूत किया जाता है, तभी जाके वो एक अच्छी सी इमारत बनेगी। और वही माइंडसेट हम लोगों को सबको एक रखना है कि फेलियर कभी भी फेलियर नहीं होता है। वो तो एक दूसरा स्टार्ट लेने के लिए आपको वहां पर उसने अटकाया, अब उस एक्सपीरियंस को लेके दूसरा करो। जैसे हमारे सनी ने कहा कि 36 मरतबा, तो एक जगह पे अटके
दूसरा शुरू किया, दूसरी जगह पे अटके, तो 36वीं मरतबा तो 38वीं मरतबा सक्सेस हुए। तो फेलियर कभी भी फेलियर होता ही नहीं है। वर्ड फेलियर हम लोगों ने दिमाग में अलग से कर लिया है, एक्चुअली फेलियर नहीं है। फेलियर इज नॉट देयर, वो एक एक्सपीरियंस ही है। वो तो हमने पास और फेल की डेफिनेशन बना दी। 11-12 तक, 1 से लेके 12 तक में पास होना फेल होना। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया भाई सनी, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 से 8 के बच्चों को पास ही कर देने का, फेल करने का। तो भाई यानी फेलियर जैसा होता नहीं है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। आफ्टर दिस सक्सेस 51 साल की उम्र के बाद मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि ये इसमें मैं भी यही क्वेश्चन करता जो आपने किया। Sir, I would like to quote Zig Ziglar on what you said. Failure is not a person, failure is an event. जो एक हुई, एक person failure नहीं हो जाता है अगर उसकी कोई failure हो। In exchange with Sunny, yeah. I would like to add one thing, which is बहुत छोटी सी बात जो मैंने सुनी थी कि अगर आपको सूरत से मुंबई जाना हो इन कार और आपने जर्नी रात को स्टार्ट की, तो हम पूरा रास्ता नहीं देख सकते सूरत से मुंबई तक का। हम क्या करते हैं कि हम हेडलाइट्स ऑन करते हैं, हम कुछ मीटर्स तक ही देख सकते हैं, 2 या 3 मीटर तक देख सकते हैं। उस 2 या 3 मीटर के ही विजन से हम 400 किलोमीटर का रोड कंप्लीट करते हैं। तो कोई भी काम अगर आपको करना हो एज स्टूडेंट्स, वो एजुकेशन में हो, वो आपके करियर में हो, अगर हम सारा अभी से सोचेंगे कि यहाँ फेल होंगे यहाँ फेल होंगे, तो जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगी। आपका टास्क है आपको सिर्फ पहले फिक्स करना है कहाँ जाना है, दैट इज जो एग्जाम्पल में था मुंबई। एंड आपका नेक्स्ट टास्क इज कि नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फोकस करना है कि उसको नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ना उसको कैसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व करते जाएंगे, अब जब पीछे मुड़ के देखोगे आपको पता चलेगा कि मैंने बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। जस्ट टू ऐड, मैं आपकी तरफ से एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। संसार का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्रिटिसिज्म। एक चीज याद रखना, जिसको आपकी टैलेंट नहीं पता, जिसको आपकी स्किल नहीं पता, जिसको आपकी जर्नी नहीं पता, किन परिस्थितियों से आप बाहर आए, उसको कुछ नहीं पता आपके बारे में, आपके दिमाग में कौन सा विजन पनप रहा है उसको नहीं पता, उसकी क्रिटिसिज्म की क्या वैल्यू, राइट? तो सिलेक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग मुझे क्या समझते इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं खुद को क्या समझता या समझती हूँ इज मोर इंपॉर्टेंट। सेल्फ बिलीफ से इग्नोर एवरीथिंग, कीप वर्किंग एंड यू विल सक्सेस। अप्रोच पता फारूक भाई तो मेरे दोस्त है ही, चनीवाला साहब अपने सॉरी चारणिया साहब ये पर्सनल मेरे घर पे आ चुके हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं सब मेमन कम्युनिटी, और खास करके हमारे डीएनए में ऐसा बोला जाता है कि बिजनेस हमारे डीएनए में है। बहुत एजुकेशन की ये सब बात बहुत हुई और बहुत अच्छी है आज के ज़माने के हिसाब से। मेरा फारूक भाई क्वेश्चन ये है कि स्विमिंग पूल के अंदर जब एक करना सीखना होता है तो उसकी बुक की पहले रीडिंग की जाती है कि भाई इस तरह पानी में जाना है, हाथ हिलाना है, या ये वीडियो देख लो या ये देख लो। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब पानी में फर्स्ट टाइम गिरा तो सब भूल गया था। वो तो मुझे जो एक्सपीरियंस जो सीखने को मिला या बिजनेस में आज तक जो आगे बढ़ा या जो भी लेवल पे हूँ, वो जब फील्ड में उतरा तभी मुझे सीखने मिला और सक्सेस मिला। तो हम लोग जो खास करके ये मेमन कम्युनिटी बैठी है, ये ठीक है, बातें बहुत अच्छी है और ज़रूरी भी है, अप्रिशिएट है, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा बिलीव करते हैं कि भाई बुक तो पढ़ लेते हैं स्विमिंग की, लेकिन पानी में उतर के हाथ पैर चलाना चालू कर देते हैं और 2-3 दिन 4 दिन 6 दिन में सीख जाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा आपका फारूक भाई ओपिनियन बताइए प्लीज। अफरोज भाई, एक बहुत अच्छी चीज़ आपने कही कि मेमन कम्युनिटी यानी साहस की कम्युनिटी के तरीके से उनको पहचाना जाता है, और ये बहुत सारे मुस्लिम बाकी की कम्युनिटी के लीडर हैं और उसको मैं भी मानता हूँ। एक्सपीरियंस
जो आप बुक की बात कर रहे हैं कि बुक पढ़ने के बाद जब स्विमिंग पूल में गिरते हैं तो उसके बाद हमको बुक की बाकी की सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। इसी तरह से बिजनेस में कूदने के बाद आपका कहने का मतलब बिजनेस में एक मतलब हम लोग साहस से कूद जाते हैं। हम अगले लेवल का सोच करें कि एक पढ़ा लिखा और एक प्रैक्टिकल जिसने किया हुआ या थियोरेटिकल पढ़ा लिखा व्यक्ति जब बिजनेस करेगा तो उसका एक तरीका भी अलग होगा और उसके लिए बहुत दूर तक जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। याद रखना, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जा सकते, बाकी के लोग प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस या थियोरेटिकली पढ़ लिख के लोगों के साथ इन लोगों के साथ में एक्सपीरियंस लेके अगर आगे बढ़ते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी दूर तक जाने की बहुत है। अदरवाइज होता क्या है कि आदमी जब शुरुआत कर लेता है तो कुछ अंतर तक तो वो पहुंच जाता है, फिर उसकी हेडलाइट बंद हो जाती है। जब हेडलाइट बंद हो गई तो गया, तो वो हेडलाइट को हमेशा के लिए चार्ज रहे, इसके लिए एजुकेशन की जरूरत है। तो हम लोगों को ये कतई भूलना नहीं चाहिए कि यू पीपल आर सक्सेस, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर के इसमें ज्यादा है बावजूद उसके कि अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिख के आगे बढ़े होते। तो मैंने आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे सीए देखे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए, वो आमिर भाई हैं, वो फैजल भाई वगैरह है, दे आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग। उनके पास एक विजन है, तो आगे चल के जैसे जैसे अफरोज भाई हम लोग तो सक्सेस हो गए मान लो, लेकिन वो असल सक्सेस नहीं है। इफ वी कंपेयर अवर सेल्फ विद द अदर गाइज हु हैव स्टार्टेड विद द जीरो इन 2004, दे आर ऑन टुडे 50,000 करोड़। तो आज हम लोग इतरा रहे हैं 2000 करोड़ के ऊपर, तो वो गलत है। शायद हम तो 10,000 करोड़ में पहुंच सकते थे ना। यू अंडरस्टैंड? सो ये बहुत जरूरी है कि इसका नॉलेज लेना, इसकी पढ़ाई करना। चाहे हम पहली मर्तबा कूदे और भूल जाएं वो चलेगा, लेकिन इसका एक्सपीरियंस, इसकी पढ़ाई, इसकी थियोरेटिकली, इसकी प्रैक्टिकल, ये सब चीजें करते हुए इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। लॉ, कायदे, कानून, सारी चीजें, ताकि हम लोग कहीं इस जगह पे, इस जंक्शन पे न फंस जावे कि जिस जंक्शन से हम लोग उसको फिर फेलियर कहना शुरू कर दे। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट अफरोज भाई कि वी शुड डू द बिजनेस, और बिजनेस ही करना है मैं तो कहूँगा, लेकिन उसको अच्छी तरह से एजुकेट करके ही करना है, ताकि भविष्य की, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स जो है हमारी, वो हमको आए तो वो रिजॉल्व हो जाए हमारे से। यही मेरी इसके पीछे आपकी गिनती है। अफरोज भाई, आपका एक सवाल है, एक एग्जांपल देता हूं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल। सैम वॉल्टन वो इंसान है जिसने वॉलमार्ट बनाई, वॉलमार्ट का फाउंडर। वो एक गरीब फैमिली से आता था, 8 बच्चे थे घर में, 8 साल की उम्र में दूध और न्यूज़पेपर बेचता था घर को सपोर्ट करने के लिए। जब वो कॉलेज में था वो 2 जॉब करता था पढ़ाई के अलावा। ग्रेजुएशन के बाद वो सोच रहा था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ तो करना है, और उसको एक चीज समझ में आई कि मेरे को माल खरीदना और बेचना बहुत अच्छा लगता है, सो मैं ट्रेडिंग बिजनेस करूंगा। तो इसलिए रिटेलिंग को उसने चुना ना। अपने अक्सर ये होता है धंधा शुरू करते जो होगा देखा जाएगा, व्यापार तो अपने जीन्स में। उसने वो रास्ता नहीं अपनाया। उसने सबसे पहले एक रिटेल स्टोर में जॉब की। बोले मेरे बॉस से सब कुछ सीखा। दोपहर को 1 घंटा खाने का मिलता था जिसमें 15 मिनट में लंच लेता था, 45 मिनट कॉम्पिटिटर के स्टोर में जाकर वो कैसे धंधा करता है वो सीखता। शाम को 6 बजे निकल के लाइब्रेरी जाता था, रिटेल मैनेजमेंट की सारी किताबें पढ़ डाली। जब कॉन्फिडेंस आया तो जाके बेन फ्रैंकलिन की फ्रेंचाइजी ली। क्यों? एक शॉप चलाना आ गया था, लेकिन चेन ऑफ स्टोर कैसे संभालते। बेन फ्रैंकलिन की उस समय 650 स्टोर थे, उसको चेन ऑफ स्टोर संभालना सीखना था, पहले वो सीखा। और 1962 में 1945 में पहली बार जॉब की, एंड 1962 में पहला वॉलमार्ट, 17 साल की प्रिपरेशन। उसके बाद उसने वॉलमार्ट लॉन्च किया, एंड 29 सालों में 29 years in 1991 due to cancer when he passed away, 2,700 stores, राइट? ये प्रिपरेशन का नतीजा है। जंप करेंगे तो 2 या 4 स्टोर, कूद पड़े तो 2 या 4 स्टोर, 5 स्टोर खत्म।
लेकिन 5000 स्कोर करना है, प्रिपरेशन। हेलो सर, एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चन हैं, मैं साथ में बता देता हूँ। पहला तो मनन सर से है कि सर आप साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा सिक्योरिटी में है, तो सर बहुत अच्छी बात है सर, हमारी कम्युनिटी के अंदर में ये आप माशाल्लाह बहुत अच्छे ये फील्ड में आगे है। तो सर ये आने वाले अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें आप यूथ को किस तरह से इसमें आप गाइड कर पाएंगे सर? अगर कोई इसमें आगे बढ़ना चाहता है तो आप कैसे गाइड कर पाएंगे सर? ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन मैं साथ में पूछ लेता हूँ जो सबके लिए है कि सर मैंने एक चीज़ देखी कि हमारी कम्युनिटी जनरली सब जगह होता है कि जब कोई फेल हो जाता है तो उसके लिए वो नसीब कि भाई उसका नसीब अच्छा था, मेरा नसीब खराब था, वो बेचारा मैं बदनसीब हूँ, वो अच्छा नसीब वाला था। और जब किसी सक्सेसफुल इंसान को पूछते हैं वो बोलता है मैं हार्डवर्क करके आगे बढ़ाऊँ। तो ये दोनों में कितना नसीब को दोष देना चाहिए और कितना हार्डवर्क को मानना चाहिए, वो प्लीज़ आप क्लियर करिए, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज़ सुनी हुई है। थैंक यू। Nice question actually. So first question first. साइबर सिक्योरिटी एज अ टॉपिक, वो अगर आप मतलब 15-18 साल पहले जब मैंने शुरू किया तब की बात करते हैं तो बिल्कुल अनजान सब्जेक्ट था, लेकिन आज ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है साइबर सिक्योरिटी। सो आप जब इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें जो आपके स्ट्रीम्स हैं उसमें एक आपका ऑप्शन साइबर सिक्योरिटी का भी मिलता है, ओके। बट अगेन वो ज़रूरी नहीं है, अगर वो करके आते हैं तो वो एक एडेड एडवांटेज है अगर आप वो सब्जेक्ट में जाते हैं तो। जैसा कि अफरोज भाई ने भी मेंशन किया कि फिर वो आप जब स्कूल में गिरते हैं तब समझ में आता है, तो वो फिर ये बेसिकली थोड़ी सी तैयारी है। अगर आप नहीं भी करते हैं और आप स्कूल में गिर रहे हैं तो उस वक्त भी देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स, जैसे कि सर्टिफिकेशन है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो आप कर सकते हैं, और ये सारे कोर्सेरा वगैरह पे फ्री में अवेलेबल है। सीख के एग्ज़ाम दीजिए और क्वालिफाई कीजिए अपने आप को। मिनिमम डिग्री चाहिए, आप मिनिमम डिग्री लीजिए एंड जस्ट जंप। ये जो टॉपिक है ये आज इतना पॉपुलर हो गया है, इसमें इतनी ज़रूरत है कि मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया लेवल पर सिर्फ 5% आज हम लोग इस ज़रूरत को पूरी कर पा रहे हैं। सो 95% अपॉर्चुनिटी है अपने पास, 95%, इट्स अ बिग नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अपने आप को एजुकेट कीजिए, क्वालिफाई कीजिए, सो दैट अगर इस सब्जेक्ट में अगर आपको एंटर करना है तो यू आर प्रिपेयर्ड, ओके। और अगर फॉर्मल एजुकेशन के जरिए अगर नहीं कर पाए तो फिर सर्टिफिकेशंस कर लीजिए विथ योर करंट प्रोफाइल। मिनिमम क्राइटेरिया है, आप आईटी बैकग्राउंड से अगर आ रहे हैं तो फिर इस सब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा इजीली रिलेट कर पाएंगे, पर अगर नहीं भी है तो भी इसमें आप हाथ पैर मार के सीख ही जाएंगे। इसमें करीब 13 वर्क स्ट्रीम्स है, अलग अलग टाइप की स्ट्रीम्स है, 13। तो आप अगर एक टॉपिक को भी पिक करेंगे और आप अगर मार्केट में एंटर करेंगे तो फिर धीरे धीरे आप दूसरे एरियाज में आप जंप करके आप सीख सकते हैं। और ना भी सीखा तो वो एक स्पेशलाइजेशन जो है ना वो आपकी लाइफ टाइम के लिए भी इनफ है, along with your career path. So you can grow to a point where perhaps you can go director and much higher just by touching one stream. मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जनरलाइजेशन मिला, मैं आई वॉज एबल टू कवर एवरीथिंग, मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी गई बिकॉज कोई था ही नहीं। लेकिन आज तो इतने अलग अलग सेक्शन डिपार्टमेंट बन गए हैं, हर टॉपिक के लिए एक डिपार्टमेंट। बिकॉज मैं जल्दी था, आई वॉज एन अर्ली मूवर, मुझे उसका एडवांटेज ये मिला कि उस डिपार्टमेंट इतने सारे डिपार्टमेंट का मैं हेड। बट आप एक स्ट्रीम को भी अगर पिक करते हैं तो वो बहुत ही आगे आपको लेकर जा सकता है। यूनिवर्सिटी वाइज मैंने बता दिया आपको, यू कैन अप्रोच एनी यूनिवर्सिटी, जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है आप अप्रोच कर सकते हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल है आपके लिए। अ लॉट ऑफ यूट्यूब कंटेंट इज अवेलेबल, कोर्सेरा है, देयर आर अदर ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल्स व्हिच कैन बी यूज्ड, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। आपका ओके, सो इसको मैं एकदम अपने एग्जांपल से ही बता दूंगा। तो मैं 2008 जो मेल्ट डाउन था, सब प्राइम ब्रोकरेज, सॉरी सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं उसको, वो उस वक्त मेरे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज आई थी लाइफ में कि मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की थी। और उस वक्त व्हाट हैपेंड वाज
मैंने एग्जिस्टिंग जॉब को ड्रॉप करके मैंने कुछ नया कोशिश की, मैं गया, आई couldn't succeed. Of course, learning was what I can say today. At that time, I was very dejected. When I came back to Bombay and I started searching for job, मैं जो देख रहा था 2 महीना कहीं मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था. मुझे जो कंपनी जहाँ पे मैं काम कर रहा था ऑलरेडी, E-Clubs, उन्होंने मुझे फिर से हायर करने का प्रपोजल भेजा. बट इस बार बॉस अलग था, somebody else was there. तो मैं गया, उनसे मिला, तो मुझे मिलने पर समझ में आया कि जो बंदा मेरा इंटरव्यू ले रहा था उसने बेचारे ने इंटरव्यू भी नहीं लिया, मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया. उसने बोला हम लोग कॉफ़ी पे मिलते हैं. और उस बंदे ने जिसने मेरे से डिस्कस किया, वो बंदा मेरी पोजीशन पर हायर हुआ था. और अब मुझे 1 लेवल डाउन जाना पड़ा बिकॉज मेरे पास ऑप्शन नहीं था. मैं गया एंड आई रिस्पेक्टफुली एक्सेप्टेड इट. अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि बिकॉज मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी 1 लेवल डाउन, मेरे पियर्स जो थे अभी वो कभी मुझे रिपोर्ट करते थे. नेचुरली एक नीचे लेवल आ जाते हैं, तो अब वो मेरा लेवल वो हो गया. ओके, वो एक इसमें सब्र और का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है. आपको पॉजिटिवली लेना पड़ता है, यू डोंट हैव अ चॉइस. तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ऐसा था कि मेरे लिए ये चैलेंज था. अभी मैं इसको नसीब को ब्लेम करूँ या क्या करूँ मुझे वो मालूम नहीं है. उस वक्त मैंने बस ये है मेरे पास और मुझे ये करना है. एंड दिस इज गोइंग वेल विथ मी. अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट उस कंपनी ने मेरा काम वैल्यू किया, इसीलिए उन्होंने मुझे फिर मिला. आई स्टार्टेड दिस जर्नी ओवर देयर एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू नॉट ओनली विदिन 3 months टाइम, क्योंकि मेरा कनेक्ट वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग था कि विदिन 3 months टाइम जिसको मैं रिपोर्ट कर रहा था उसने खुद ने आके मुझसे बात कर, मुझे बोला भाई क्या है, तू क्या करता है, या तो तू रह सकता है या तो मैं रह सकता हूँ, तो लेट अस डिसाइड. वो एक हम 6 महीना कंटिन्यू हमने किया दोनों ने, और उसने डिसाइड किया कि हम अभी स्ट्रैटेजाइज करेंगे. ये मेरी बॉस से बात हो रही है. ओके, मैं जिसको रिपोर्ट करता हूँ वो मुझे बोल रहा है कि लेट अस स्ट्रैटेजाइज. ओके, तू एग्जिट ले तो तू मुझे पहले बता दे ताकि मैं अपना प्लानिंग करूँ, फिर मैं एग्जिट करूँ, या हम लोग उसको टाइम देंगे बराबर से ताकि कुछ डिस्टर्ब नहीं. काफ़ी सारे चेंजेस भी आए ऑर्गेनाइजेशन में, और देयर वर रीजंस व्हाई वी हैड टू मूव. बट वो वक्त जो मेरे लिए था वो बहुत ही कीमती था. और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में मुझे एडवाइस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली. एंड उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया एंड आई वाज विद देम फॉर 10 years. मुझे ग्रोथ भी दिया और मुझे सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया. तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाटएवर आई एम हियर टुडे इज फॉर ऑल ऑफ दोज अप्स एंड डाउन्स. किसी की भी लाइफ स्ट्रेट नहीं है. आप किसी का भी सब्जेक्ट उठा के देख लो तो किसी की भी लाइफ स्ट्रेट नहीं. आज हम बोलते हैं कि भाई सक्सेस है वो ठीक है, लेकिन आप पन्ने पलट के देखो तो सबने अप्स एंड डाउन्स देखे थे. तो आप अगर नसीब को कोसते रहोगे तो फिर आई डोंट थिंक यू विल एवर बी एबल टू कम अप. सो दिस इज माय सिंपल एनालिसिस टू दिस. थैंक यू. अब ये नसीब के ऊपर में भाईजान आपको कहूँ कि हम मुसलमान हैं, तकदीर के ऊपर हमारा ईमान है. आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व कुतुबिही. तो हम लोगों को ये पता है कि तकदीर तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन हज़रत अली का कौल भी है, वो भी याद रखना है कि मेरे घोड़े की हिफाजत मैं तभी अल्लाह से चाहूँगा, एक मरतबा उसकी लगाम को मुझे खूंटे से बांधनी पड़ेगी और फिर मुझे कहना पड़ेगा कि अब मेरा घोड़ा नहीं भाग जाएगा. आप समझ रहे हो ना? तो हमको तकदीर पे भरोसा तो ज़रूर करना है, लेकिन मेहनत के अलावा तकदीर के भरोसे के ऊपर में अगर हम लोग चलेंगे तो ये चीज़ें बनने वाली या तो नहीं है या तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. कुछ इल्ला माशाअल्लाह 1,00,000 2,00,000 में से किसी को कोहिनूर मिल गया, वरना हम तो बाकी के सब लोग ऐसे ही बनते फिरेंगे. यानी अल्लाह की सुन्नत भी है कि हमको मेहनत करते हुए देख के अल्लाह तबारक ताला तकदीरों को बदल देते हैं. और हम लोगों को भरोसा है कि मेहनत हमारी इतनी होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला हमारे तकदीरों को भी बदल देगा. यानी दोनों चीज़ें हैं, तकदीर भी है और मेहनत भी है. एक अल्लामा इकबाल का कोट है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है. तो बस ये एकदम फिट होता है जो फारूक भाई ने भी कहा और आपका जो सवाल.
This will be the last answer, and we are one question lined up after this. This will be the last. एक्चुअली मैं वही अलामा इकबाल को ही कोट करने वाला था. थैंक यू सुहेल भाई. बट एक चीज अगेन वन एग्जांपल, मार्क स्प्लिट नाम का एक स्विमर था जिसने 1972 के ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल जीते थे. उससे आगे के ओलंपिक्स में वो सिर्फ एक सिल्वर मेडल जीत पाया था. तो जब वो 7 गोल्ड मेडल मिले तो वो प्रेस वाले जाते ना उसका इंटरव्यू लेने, किसी के मुंह से निकला यू आर सो लकी, पिछली बार तेरे को सिर्फ एक सिल्वर मिला था, इधर 7 गोल्ड मेडल एंड यू हैव लिटरली डोमिनेटेड द कैटेगरी, यू आर सो लकी. इस भाई साहब को इतना गुस्सा आया है कि भाई साहब शांति से सोच के बोलते हैं कि यस, पिछले ओलंपिक्स से इस ओलंपिक्स के बीच में 4 साल लगातार समर विंटर जो को हर सीजन रोज के 10 घंटे स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने को अगर आप लक बोलते हो तो यस आई एम लकी. Sir, before I go to the next question, एक मुझे रिक्वेस्ट आया मनन सर आपके लिए, किसी को आपका वो डायलॉग सुनना है जो आपने कहा कि मैंने BNP पारिबा को रिजेक्ट किया. So that is phenomenal. I mean, imagine ये आपका कॉन्फिडेंस और आपने इतना सभी ना करियर मूव. Somebody really wanted to hear this, you know, आपने BNP पारिबा को रिजेक्ट किया. If you can repeat it, I don't know. उसको कोई पढ़ना होगा BNP पारिबा से, I don't know. अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने BNP को रिजेक्ट किया. That makes me happy. But obviously, more importantly, the message here is the rejection was just so that it is clear for everyone that the more idea was somewhere कि मेरा करंट ऑर्गेनाइजेशन जो था वो उसमें जो मेरा जो करियर था वो एक अलग ही बुलंदी पे था. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त कि आई एम नॉट डन, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ और बहुत कुछ और कर सकता हूँ. उस वक्त मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे 5 साल का एक प्रोजेक्ट प्लान बनाने का अपॉर्चुनिटी दिया एंड द टोटल वैल्यू ऑफ दैट प्रोजेक्ट प्लान वॉज 45 crores. सो फॉर दैट एज मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पर ट्रस्ट करके किया था. दैट वॉज द रीजन. बट यस, मैंने BNP को Sir, since everybody is showing off their skills about Allama Iqbal, I want to give my 2 pennies worth. अगर हो काबिल तो हम शान कई देते हैं, अगर हो काबिल तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वाले को हम दुनिया भी नहीं देते हैं. This is a shade of Allama Iqbal. And last question. Myself, Amina Kausar Amini Kopra. Sir, I want to ask that, when did you consider yourself a success? This question is for whom? Suhail Bhai Savani. Suhail Bhai Savani. सक्सेस मेरी नज़र में ये नहीं है कि मैं कितना करोड़पति बन गया, कितनी प्रॉपर्टीज बना ली, कितनी ब्रांचेस कर ली. मेरी नज़र में सक्सेस वो है कि मैंने कितने मेरे जैसे डुप्लीकेट सोयल को बनाया. तो जब मैं डुप्लीकेट सोयल को बनाऊंगा, मैं फ्यूचर के लीडर्स को क्रिएट करूंगा और जब वो लीडर्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो ये सवाब जारिया भी है और ये एक आप अलैहिस्सलाम और बुजुर्गान दीन के सिलसिले के बाद जो हर एक इंसान के कंधों पे अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी सौंपी है खिदमत खल्क की, उसका भी एक अमल है. Thank you, sir. Here we wrap up the panel. Sorry. Okay. हेलो. सी बेटा, यहाँ जितने स्टेज पे है ना, आई थिंक एवरीबडी वुड एग्री कि यहाँ कोई भी सक्सेसफुल होने के लिए काम ही नहीं कर रहा. सक्सेस होता क्या है? हम सिर्फ काम ही कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, नए नए मकाम हासिल कर रहे हैं. हमारे लिए सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है. बस ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सके, जितनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी खुद अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए हासिल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर सके, जब तक ये जर्नी जारी है हम तो इसी में खुश हैं. यहाँ कोई किसी मंजिल के लिए काम नहीं कर रहा है,
कोई सक्सेसफुल होने के लिए काम नहीं कर रहा है, या सिर्फ अपनी पोटेंशियल को जीने के लिए काम कर रहा है। नाउ एक मिनट थोड़ा सा मैं एक चीज़ कह दूँ, नॉट ओनली सक्सेस, आई जस्ट टेल के जब हम सक्सेस जिसको हम लोग आज समझते हैं उसी भाषा को बहुत सारे बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं और बहुत सारे सक्सेस पीपल भी बैठे हुए हैं हमसे भी ज़्यादा। तो हमको एक नियत करनी चाहिए कि जो कुछ सोसाइटी से हमको मिला हुआ है हमको वापस से सोसाइटी को देने की नियत करनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे सूरत में जो इदारे चल रहे हैं जैसे एंग्लो उर्दू है, यतीम खाना है, लास्ट वीक की हमारे अफरोज भाई वगैरह ने एक हॉस्टल का उद्घाटन किया। जिस तरह से पीमेट है, जैसे रवि साखरिया ने बताया होगा कि प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट जहाँ पर करीब 125 सीए बन रहे हैं, 28 बन चुके हैं, 48 डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो सोसाइटी के अंदर अगर चेंज चाहिए तो हमको ये चीज़ सक्सेस होने के बाद भी या इन बिटवीन द ट्रैवल भी हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम अकेले सक्सेस हो गए या हम अकेले ऊंचाई और बुलंदियों पे पहुंच गए तो अकेले हो जाएंगे। हमको ये चाहिए कि सारे के सारे बैठे हुए सारे के सारे लोग और जो बाहर घूम रहे सारे के सारे लोग एक साथ में हमारे साथ चले। तो उसके लिए हम सबको अपनी सोसाइटी में से जो कुछ मिला है उसको हमको देना चाहिए वापिस सोसाइटी को। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द डिग्निटरीज एंड ऑल द ऑथराइज्ड पीपल कि ये चीज़ भी हमको सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए करनी चाहिए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इस चीज़ के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जस्ट टू कंक्लूड, यहाँ एथिक्स की बातें हुई थी, एथिक्स एंड प्रिंसिपल की बातें हुई थी। एक ईमानदारी वो होती है कि हम किसी को चीट ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, पैसा कमाने के लिए गलत चीज़ें ना करें। बट एक होती है एज अ सिटीजन इज नेशनल, और जो नेशनल ड्यूटी बोलो या नेशनल कंट्री के प्रति जो हमारी एथिक्स होती है, डू फॉर्मल बिजनेस। कच्चे का विदाउट बिल का काम नहीं करना, ये शायद सबसे बड़ा एथिकल प्रिंसिपल है। सो दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एथिक्स कैनॉट बी अ पार्शियल कॉन्सेप्ट, एथिक्स हैज टू बी अंडरस्टूड इन टोटालिटी। बिजनेस करे तो वाइट में करे, फॉर्मल करे, देश को उसका टैक्स दे, एक नागरिक होने का हक अदा करे, उसको एथिक्स बोलते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। Thank you, sir. Thank you. It was a life-changing experience, at least for me and most of the people sitting over here. I request everyone to stand and clap for the dignitaries. Thank you very much, sir. Sir, we would like to just take your seats, sir. Once again, sir. Thank you. Please take your seats, sir. We'll continue with the felicitation program. Okay, sir, please, everyone, smile, sir, please. Yes, sir, thank you very much.